نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم سب یہاں جمع ہیں. جو کچھ ہم نے پچھلے اپنے چند ماہ کے اندر عربی گرامر کی قواعد کے حوالے سے چیزیں پڑھی تھی اس کو ہم جو ہے وہ وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا تو ہم کرتے تھے، لیکن آج سے انشاءاللہ تعالی ہم جو کچھ ہم نے گرامر پڑھی اور وہ گرامر کا حصہ جو ہم نے نہیں پڑھا، چاہے اس کی کچھ بھی وجوہات کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اب قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اس گرامر کے حوالے سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں قرآن کے ساتھ اگر اپنے آپ کو آپ نے جوڑنا ہے، تعلق رکھنا ہے، تو وہ ڈیلی بیسس کا ہونا چاہیے. چاہے وہ آپ 10 منٹ دیں، 15 منٹ دیں، آدھا گھنٹہ دیں، یا آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ دیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ، فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا وقت دیں. یہ ضرور آپ کے ساتھ آئے گا. اس کو وقت نہیں دیں گے تو اللہ کے نہیں آپ کی. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ آگے بڑھتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج اس انالیسس کو شروع کریں گے. اس کے کرنے کا طریقہ کار ہمارا بہت سادہ ہے. میرا طریقہ کار بہت زیادہ آسان ہے. جو بھی آیت آئے اس کے ایک ایک کلمے کی ہم انالیسس کرتے ہیں. شروع میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل لگ جائے گا، ہو سکتا ہے کچھ جگہ پہ آپ کو تھوڑی سی بوریت بھی لگے، لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کے اندر اپنے آپ کو ایک دفعہ جمانا شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے چیزیں آسان بھی ہو جائیں گی اور چیزیں جلد سے جلد ہوتی رہیں گی. ہو سکتا ہے آج، ہو سکتا ہے شاید آپ کے پورے سیشن میں سورہ فاتحہ مکمل نہ ہو سکے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ایک ایک سیشن کے اندر 8 8 10 10 12 12 آیات کا مطالعہ کریں. جیسے ریسنٹ جو ابھی حالیہ میری جو انالیسس کی کلاس چل رہی ہے اس کے اندر ایوریج وہ بھی ویکلی ایک ہوتی ہے. ہم جو سیٹرڈے کے روز صبح وہ کلاس ہوتی ہے، تو اس کے اندر ہم نارملی کوشش کرتے ہیں کہ ایک صفحہ کم سے کم اس کو کریں، چاہے اس میں جتنی بھی آیات ہو. تو ہم ایک صفحہ کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی وقت ایسے ہی آ جائے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی ایفرٹس پہ کام کرتے ہیں. تو آج ہم شروع کریں گے، اور شروع کریں گے جو تعوذ اور تسمیہ ہے اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ترکیبیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. میں آپ کے سامنے ترکیب لکھ تو نہیں رہا، کہہ تو نہیں رہا، لیکن ایک وربلی طور پہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ساتھی اس کو کر بھی دے. عائشہ، اگر میں آپ سے کہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ترکیب ذرا کریں اور اس کا ترجمہ کر سکیں گی؟ جی عائشہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم سر، ٹرائی کر سکتی ہیں؟ جی بالکل کریں. جی کریں، وربلی کریں سر. اعوذو فیل لگتا ہے، ابھی اس کے بارے میں مجھے ویسے کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعوذ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلی چیز آپ نے ہمیشہ بتانی ہے جب بھی آپ کو کلمہ دیکھیں وہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف. ٹھیک ہے. اب اسم کی بنیادی نشانی آپ کو معلوم ہے کہ اسم کی بنیادی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے، اس پہ الف لام داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے حرف جارہ ہوتا ہے. یہ وہ بنیادی نشانی ہے کہ جس کی بنا پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسم ہو سکتا ہے. فعل کی جو نشانیاں ہیں وہ یہ کہ اگر اس میں علامت مضارع آ سکتا ہے، اس سے پہلے قد آ سکتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ فعل. اب اعوذ ایک ایسا کلمہ ہے، اعوذ ایک ایسے وزن پر ہے کہ جس وزن پر اسم بھی آپ کا بنتا ہے جس کو ہم اس میں تبدیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کا وزن بھی افعلوا کے اوپر ہے. اور اعوذ جو ہے وہ فعل مضارع واحد متکلم کا بھی صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فعل ہے کہ یہ اسم ہے؟ تو دیکھیں، میں نے آپ کو پچھلی والی جو ہماری کلاس تھی میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا
کہ آؤ جو اس میں تبدیل ہے اس کی پہچان ایک بہت آسان. اس میں جی تبدیل کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے یا تو آپ کو ایک مبتدا ملے گا یا اس میں تبدیل بطور مضاف آئے گا. تو جی آپ دیکھیں اس سے پہلے نہ آپ کو کوئی مبتدا مل رہا ہے نہ اس کے آگے کوئی مضاف الیہ مل رہا ہے. تو پھر جی یہ آؤ کیا بن جائے گا آپ کا واحد متکلم فعل مضارع. ارے واحد متکلم. اب جب بھی کوئی فعل آپ دیکھیں تو اب آپ نے فعل کے بارے میں آپ نے پہلی چیز تو بتا دی کہ فعل مضارع واحد متکلم ہے. فعل کے بارے میں اب آپ نے دوسری چیز بتانا اس کا ماضی اس کا باب اور اس کا پہلا صیغہ اور ہو سکے تو اس کا مصدر بھی بتا. اس کا ماضی بتا سکتی ہیں؟ سر اس کا مادہ عین واؤ اور زال ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے. این واؤ زا اور اس کا باب ہے باب نون. نون. باب ہے باب نون. باب نون پہ جب این واؤ اور زا کو اگر آپ بناتے ہیں تو اس کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے؟ آوازہ یا وضو. آوازہ یا وضو. اب آوازہ یا وضو بنا اس میں حروف علت عین کلمے میں آیا اس کا مطلب تبدیلی آئی. جی تو آوازہ میں تبدیلی ہونے کے بعد کیا بن جائے گا؟ آوازہ تبدیلی ہونے کے بعد کیا بن جائے گا؟ اس کی تبدیلی میں یہ الف میں چینج ہو جائے گا نا. کیا بن جائے گا؟ آوازہ کیا بن جائے گا؟ آزا. آزا. اور یا وضو کیا بن جائے گا؟ یا وضو. یا وضو. یا وضو. جی این کلمہ پہلے ساکن تھا پیش آ جائے گا. اور تو آزا یا اوزو آزن پناہ مانگنا. تو آوزو کیا ترجمہ کرے گی؟ میں پناہ مانگتا ہوں. آپ تو مانگتا نہیں کہیں گے نا, آپ تو اپنے الفاظ میں چلیں گے. میں پناہ, آپ تو اپنے جینڈر صحیح کریں. ہاں مانگتی ہوں. ہاں میں پناہ مانگتا ہوں. اچھا میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگوں گا. پناہ مانگنا ایک ایسا فعل ہے جس کے اندر آپ کو دو متعلق کی ضرورت ہے. جس طرح فعل کو بعض دفعہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو اس کو دو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے. جس کی طرف پناہ مانگی جاتی ہے وہ ہمیشہ با کی پریپوزیشن سے آتی ہے. جس کی طرف پناہ مانگی جاتی ہے وہ ہمیشہ با کی پریپوزیشن سے آتا ہے, اور جس چیز سے پناہ مانگی جاتی ہے وہ ہمیشہ من کی پریپوزیشن سے آئے گی. تو دیکھیں آگے کیا آ رہا ہے, اعوذ باللہ. تو با کیا ہو جائے گا؟ حرف جارہ. با حرف جارہ. اور اس میں جلالہ اللہ جو ہے, مجرور ہو جائے گا. مجرور. جارہ اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہو گیا. تو دیکھیں جس سے پناہ مانگی وہ با کے پریپوزیشن سے. تو اب ترجمہ کریں, میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے. ہاں اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے جملہ اسپیلیہ کا فعل کو آخر میں جی میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں. میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں, میں اللہ کے ساتھ پناہ مانگتی ہوں. ٹھیک ہے نا. جی کس سے مانگ رہی ہے پناہ؟ من الشیطان الرجیم. جی. اب من بتائیں, من حرف جارہ. من حرف جارہ. الشیطان الرجیم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اور یہ مرکب توصیفی جو ہے من جارہ کے لیے مجرور ہو جائے گا. مجرور. جی. جارہ اور مجرور مل کے متعلق بن جائے گا. تو جی. جس سے پناہ مانگی وہ دیکھیں من کی پریپوزیشن سے ہے. جی. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. شیطان مردود سے, شیطان رجیم سے. ویسے کہ ہم اس کو مردود کہہ دیتے ہیں, رجم. یہ رجیم جو ہے نا یہ رجم سے نکلا ہے. رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو. جی. رجم کہتے ہیں پتھر مارنے. تو مارے گئے سے, رجم کیے ہوئے سے, دھتکارے ہوئے سے. تو ہم نے اس کو ایک ٹرمنالوجی میں مردود کہہ دیا. طاؤس کے بارے میں یاد رکھ لیجیے گا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے سینے میں حکم دی ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو, آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں مانگو شیطان رجیم سے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھ لیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ نے کسی وجہ سے کوئی آپ کو کسی نے بلا لیا, کسی بچے نے بلا لیا, کسی گھر والے نے بلا لیا, کوئی کال آ گئی, آپ نے قرآن مجید کو بند کیا, آپ نے اپنی بات اٹینڈ کی, اس کے بعد جب آپ قرآن کھولیں تو آپ نے واپس تعوذ پڑھنا چاہیے. نارملی میں نے دیکھا لوگ بسم اللہ پڑھ لیتے, تسمیہ الگ چیز ہے, بسم اللہ الگ چیز ہے, اور تعوذ الگ چیز ہے. حکم تعوذ پڑھنے کا, ٹھیک ہے, حکم جو ہے وہ تعوذ پڑھنے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ فاتحہ کو شروع کریں گے. سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں آپ کو 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ یہ جو کلاس ہے اس کلاس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی ترکیب بھی کریں, اس کے ترجم کو بھی سمجھیں, اور اگر اس میں کوئی بات ہے اس کو بھی سمجھیں, کیونکہ ہمارا اصل آبجیکٹو تو اس سے اصل چیز کو حاصل کرنا. سورہ فاتحہ کے بارے میں سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا بادشاہ ہے, قرآن کا بادشاہ ہے. سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں, اور عرب کا یہ خاصہ ہے کہ جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں. اس کا معروف نام تو الفاتحہ ہے, لیکن اس کے بہت سارے اور بھی نام ہیں. اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں, اس کو الدعا بھی کہتے ہیں, اس کو الشفا بھی کہتے ہیں, اور اس کے بہت سارے نام ہیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر اللہ, اس کے اندر ٹوٹل 7 آیات ہیں جس میں کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن 7 آیات ہیں کیسی, اس پہ ضرور اشکال ہے. اس پہ ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں کہ ہم اس پہ بات کریں. سورہ فاتحہ کی ٹوٹل 7 آیات ہیں, جس میں سے پہلی 3 آیات اللہ کے لیے, پہلی 3 آیات اللہ کے لیے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہے, اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہے, اور بعد کی 3 آیات بندے کے لیے. اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے اس صورت کو بین بین برابر برابر بانٹ دیا ہے میرے اور بندے کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, بہت معروف حدیث ہے. آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحہ الکتاب, جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ امام کے پیچھے کہ اکیلے سے فرض نماز میں, سری نماز میں, جہری نماز میں. سری نماز کہتے ہیں خاموش نماز کو, جیسے ظہر کی ہوتی ہے, عصر کی ہوتی ہے, یا مغرب کی 1 رکعت اور عشاء کی جو 2 رکعت ہوتی ہے آخر کی, اس کو سری کہتے ہیں. اور جس میں امام اس سے بلند آواز سے پڑھتا ہے اس کو جہری کہتے ہیں. چاہے امام کے پیچھے پڑھیں چاہے غیر امام کے, کہیں نہیں سکتے. اس کے اندر بھی تھوڑا سا اختلاف ہے, تھوڑا سا نہیں, اچھا خاصا اختلاف ہے. اور اختلاف یہ ہے کہ ایک فقہ مکتب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے, جس سے میرا بہت اختلاف ہے. اس بنا پہ اختلاف ہے کہ حدیث کے خلاف, اور حدیث بھی ایسی کہ جو کہ متفق علیہ ہے. تو جو میرا اپنا رویہ ہے, جو میرا بھی دل ٹھوکتا ہے, میرے خیال میں امام احمد کا بھی یہی جو ہے وہ رویہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے ہمیں قرآن میں ہی سورہ اعراف میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت توجہ خاموشی سے سنو. تو امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھیں اور امام جہری نماز پڑھے تب آپ کو چاہیے آپ خاموش کھڑے رہے تاکہ قرآن کی بات بھی پوری ہو جائے. اور جب امام خاموش ہے تو آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھے, اور صرف سورہ فاتحہ آپ امام کے پیچھے. ویسے تو آپ اگر اپنی انفرادی نماز پڑھیں تو اس میں تو سورہ فاتحہ پڑھتی ہے. اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ یہ سورہ ہے انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح سے سورہ کو پڑھنے کے بعد ہمیشہ آمین کہنا چاہیے. اب یہ آمین بھی اس میں بھی اختلاف ہے, یہ بالجہر پڑھی جائے گی کہ آہستہ پڑھی جائے گی, اس میں اختلاف نہیں ہے کہ آمین پڑھنی ہے. اس آمین پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے تو صرف اس پہ ہے کہ زور سے پڑھنی ہے کہ نہیں. بہرحال ہمارا یہاں سبجیکٹ اختلافی مسائل تو ہے ہی نہیں, لیکن ہمیں جو چیز کرنی چاہیے ایک بنیادی چیز ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ طلعت جی کے ساتھ ہم شروع کریں. طلعت جی پہلی آیت پڑھیں, میں نے احتیاطاً لکھ دی ہے, الحمدللہ رب العالمین. جی میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے آیت پڑھیں طلعت جی. بسم اللہ الرحمن السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. بس آپ دیکھیں پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کرنا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. الحمد کیا لگ رہا ہے, اسم فعل کے حرف. سر
अलहम्दो आपको क्या, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे चीज को तो आप चल ही नहीं सकते। इसम अलहम्दो आपको इसम लग रहा है, कैसे पता चला इसम लग रहा है, कैसे पता सर चला? मार्फा है और ये बस बहुत आसान तरीका है, अलिफ लाम दाखिल है। जी अलिफ चलो, लाम बहुत है। आसान, अलिफ लाम दाखिल है, भूल जाएं इसम। आगे आ रहा है लिल्लाही। लिल्लाही आपको क्या लग रहा है, इसम फेल हर्फ? सर ये पहले हरफ जारा लग रहा है और फिर अच्छा, अभी आपने इसमें देखिए आगे जब आपने इसम कॉल है। अच्छा, आपने बिल्कुल सही फरमाया, बस मैं आपको छोटी छोटी करेक्शन है वो मैं कराता रहा हूँ और वो आप नोट कर लें ताकि वो परमानेंट नोट होनी चाहिए। ये मुरक्कब लग रहा है ना आपको, अब आपने इस मुरक्कब को ब्रेक करके बता दें, आप इसको छोड़ने के जा रहा है कि नहीं है, मुझे बताएं। लाम बुनियादी चीजें तीन ही है ना, इसम के हवाले से तीन ही, कलमे की तीन ही चीजें हैं ना, इसम फेल और हर्फ। पहले हमने वो हाँ आइडेंटिफाई जी। किया। तो लिल्लाही के अंदर लाम क्या है, हर्फ है। जी हर्फ हर्फ जार। जारा की कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ हर्फ कह रहा हूं, अच्छा ठीक। सिर्फ हर्फ, इब्तदाई तौर पे सिर्फ हर्फ है। लाम हर्फ हर्फ, और इसमें जलाला अल्लाह क्या है, इसम इसम इसम। जबरदस्त। रब्बी क्या लग रहा है आपको, इसम फेल हर्फ, रब्बी भी इसम है। इसम। आलमीन आपको क्या लग रहा है, इसम फेल हर्फ, इसम सर ये भी इसम ही लग रहा है। लग क्यों रहा है, अलिफ लाम दाखिल है, घबराहट की जरूरत ही नहीं। ठीक है जी। तो इस आयत के अंदर आपको 1 2 3 4 चार इसम मिले, एक हर्फ मिला। ठीक है जी। अब आप तरकीब शुरू करें। अलहम्दो क्या लग रहा है आपको, अलहम्दो आपने कहा इससे में, जी अब क्या लग रहा है आपको, क्या बन सकता है ये, सर मुब्तदा। मुब्तदा क्यों बन सकता है, वजह बताएं। सर रफा है रफा है और मारफा है। बस दो ही कंडीशन होनी चाहिए लाजमी मुब्तदा के लिए, दो कंडीशन है, क्या, मारफा होना चाहिए और रफा होना चाहिए। जो भी इसम आपको कहीं भी इब्तिदा में मिल जाए या बीच में मिल जाए, मारफा हो रफा हो, गालिब गुमान आपका क्या है कि वो मुब्तदा होगा। गालिब गुमान क्या है आपका, मुब्तदा मुब्तदा। मुब्तदा होगा। बस ये ध्यान में रखें। अलहम्दो को आपने कहा मुब्तदा, अलहम्दो का आपने कहा मुब्तदा। अलहम्दो की क्या तर्जुमा है, तमाम तारीफ अल्लाह की, तमाम अल्लाह का शुक्र, क्या है, अलहम्दो में बताओ। सॉरी, तमाम तारीफ और शुक्र। हाँ, अलहम्द के अंदर याद रखिएगा कि तारीफ और शुक्र दोनों आते, तो आप इसकी कहें कुल का कुल शुक्र और तारीफ है, तमाम की तमाम हमद और सना, तमाम और तमाम तारीफें और शुक्र। आगे आ रहा है तलज्जी लिल्लाही। लिल्लाही क्या चीजें बताएंगे, सर ये हर्फ जारा फिर आगे जो है वो अल्लाह मजरूर हो जाएगा। इसको जारा कर दे अल्लाह के लिए, और ये हो गया मजरूर। ठीक है, तलज्जी जारा और मजरूर मिलके क्या बने, मुरक्कब जारी या मुतालिक। और मुरक्कब जारी उमूमन क्या बनता है, मुतालिक बनता है। मुतालिक। मुतालिक बनता है। अच्छा जी, ये मुतालिक बन गया। आपको मालूम है कि इसमें आपको कोई खबर नजर आ रही है, सर जो अगला है ये रब्बुल आलमीन ये खबर लग रही है। नहीं खबर कैसे लग रही है, खबर की क्या कंडीशन है, सर नकरा हो और वो मुब्तदा को फॉलो करेगी। नहीं, खबर की मस्ट कंडीशन याद करें। मुब्तदा को फॉलो तो जिन्स और अदद में करती है, खबर की क्या लाजमन कंडीशन है, खबर की सर लाजमन नकरा कंडीशन है। नहीं, नकरा भी लाजमन कंडीशन नहीं, नकरा होती है, लाजमन कंडीशन क्या है खबर की, हालत रफा, हालत रफा लाजमन कंडीशन है, हालत रफा लाजमन कंडीशन है। तो मुझे बताएं तलज्जी की कोई चीज आपको हालत रफा में नजर आ रही है, आपको जी कोई सर आलम कोई चीज नजर आ रही है आपको हालत रफा में, नहीं नहीं। तलज्जी कोई चीज नजर आ रही है आपको हालत रफा में, नहीं
नहीं सर, नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब है खबर तो नहीं है ना इसकी, खबर नहीं है ना जी इसका वो तो मतलब। नहीं बनती। जी ठीक। जी आपको जी ये मालूम है कि जब खबर नहीं होती है तो मुतालिक को हम क्या कर देते हैं, कायम मुकाम खबर का कायम status मुकाम। है। कायम मुकाम खबर का स्टेटस दे, तो आप लिल्लाही को कहेंगे कि ये कायम मुकाम खबर है, ठीक है, ये कायम मुकाम खबर का स्टेटस है। अच्छा जी, मुब्तदा अपनी खबर से मिलके क्या बन जाएगा, मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला क्या बन जाएगा, कौन सा जुमला, सर, जुमला इस्मिया। इस्मिया। जुमला इस्मिया खबरिया। इसका तर्जुमा करें तरह से क्या तर्जुमा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। कुल की कुल शुक्र और तारीफ अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए, कुल की कुल शुक्र, कुल की कुल तारीफ अल्लाह ही के लिए। आगे आ रहा है रब्बिल आलमीन, आगे आ रहा है रब्बिल आलमीन। मुझे बताइए आपको रब्बिल आलमीन क्या लगता है? सर मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी लग रहा है। कैसे मुरक्कब इजाफी आपने पहचाना, कैसे पहचाना? सर रब का वो हल्का है इराब, और अलिफ लाम दाखिल नहीं, लेकिन आलमीन जर में नहीं है। आलमीन है। जर में, बहुत है। जबरदस्त सवाल, बहुत जड़ में है। नहीं, देखिए कोशिश करें जिससे बात हो रही है उसका जवाब देने दें। आपकी बारी जब आएगी ना तो आप अपना जवाब दें, ठीक है, ताकि उनकी जो जो उनकी कमियों बाहर आएंगी। हर शख्स को वो मौका मिलेगा उसका भरपूर, थोड़ा सा सब्र करें, ठीक है जी। तलत जी, आपको आलमीना जो है वो हालत जर में नहीं लग रहा? नहीं सॉरी सर, ठीक है, क्योंकि वो नस्ब और जर की एक ही हालत होती है। जी, नस्ब और जर की एक ही हालत है, ठीक है? एक ही तो वो होती है। रब्बी आपका मुदाफ हो गया, हाँ जी, और वो मुदाफ इलैह हो गया। और आलमीन जो है मुदाफ। अब ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके मुरक्कब इजाफी हो गए, और ये मुरक्कब इजाफी इस जुमले में कुछ ना कुछ बनेगा, इस आयत में कुछ ना कुछ बनेगा। अच्छा जी, आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि इस्म की जो बुनियादी हालत है वो हालत रफा है, वो नस्ब या जर में जब जाएगा तो कोई ना कोई वजह होगी। अब ये तो बेसिकली इसको तो रब्बुल आलमीन होना चाहिए था ना, बुनियादी तौर पर इसको रब्बुल होना चाहिए, लेकिन ये रब्बी है। तो मुझे बताइए हालत जर में क्यों है? अब मैं इसको सर ये हर्फ जारा की वजह से। देखिए हर्फ जारा की वजह से नहीं, ठीक है, हर्फ जारा की वजह से। अब आप इसको गौर फरमाएं, अल्हम्दुलिल्लाह, कुल की कुल तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए। आगे आ रहा रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन का क्या तर्जुमा करती हैं? आलमों का रब। तमाम आलमों का रब। रब, तमाम आलमों का रब, तमाम जहानों का रब, तमाम पालने वालों का रब, जो भी आप देना चाहें, ठीक है। तो ये मुझे बताइए, तमाम जहानों का रब, तमाम आलम का रब, क्या लग रहा है ये अल्लाह की आपको? ये अल्लाह के बारे में कोई बात नहीं, सिर्फ बताई जा रही है, सिर्फ बताई जा रही है, सिर्फ बताई जा रही है। अब आप देखें, मौसूफ और सिर्फ का क्या कानून होता है? मौसूफ और सिर्फ का क्या कानून है कि सिर्फ अपने तमाम पहलू से मौसूफ के ताबे होती है। तो देखें, अगर ये सिर्फ किसकी, रब्बिल आलमीन अल्लाह की अगर सिर्फ है, तो लफ्ज अल्लाह की हालत में हालत जर है ना? जी 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 सर, वो उसको फॉलो हालत जर में, तो ये सही सिर्फ बन गया। अब जब सिर्फ बन गई है, जब सिर्फ बन गई है, तो अब आपने तर्जुमा कैसे करेंगे? सिर्फ अगर बनी है तो इसका मौसूफ है अल्लाह, और सिर्फ तो मौसूफ का तर्जुमा कैसे होता है? सिर्फ तो मौसूफ का तर्जुमा कैसे होता है? पहले सिर्फ फिर मौसूफ। अब इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? कुल की कुल तारीफ और शुक्र तमाम आलमीन के रब अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। बात समझ रही है? इसका एक तर्जुमा ऐसे भी हो सकता है कि कुल की कुल तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए, फिर आपको आगे एक जोड़ डालना पड़ेगा बिलावल।
پھر آپ کو جوڑ ڈالنا پڑے گا نا, کل کی کل تعریف و شکر اللہ ہی کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تو پھر صفت والا ٹیسٹ نہیں ملے گا آپ کو, پھر وہ صفت والا مفہوم نہیں آئے گا. اچھا, صفت والا مفہوم کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ صفت موصوف کا ترجمہ. ٹھیک ہے جی. نادیہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, الرحمن الرحیم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مجھے صفت لگ رہے ہیں اس کے رب کے. اللہ لفظ اللہ, ہاں یہ بھی صفت لگ رہے ہیں. ایک ہی صفت لگ رہی ہے کہ دو صفتیں لگ رہی ہیں؟ دو. الرحمن ایک صفت ہو گئی, الرحیم دوسری صفت. اس کا مطلب ہے کہ یہ صفت اول ہو گئی, یہ صفت اول ہو گئی, یہ صرف ثانی ہو گئی, اور یہ صرف ثلث ہو گئی. تیسری ہے نا الرحمن الرحیم. اب اس پوری آیت کا کیا ٹرانسلیشن کریں گی نادیہ؟ اس الرحمن الرحیم کی یا پوری جیسے الحمد سے؟ الحمد سے لے کر رحمان الرحیم تک کی ترجمہ کریں. کل کی کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, نہیں, ہاں, کل کی کل تعریف رب العالمین اللہ ہی کے لیے ہے. پھر الرحمن بہت ہی, جسے آپ نے بہت کہا تھا نا کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے, مبالغے کا ٹھیک ہے. ہاں, مبالغہ اس میں کہ بہت ہی مہربان ہے, رحم والا ہے, اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اچھا دیکھیں, اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں. اب آپ نے صفت کہی ہے نا, تو صفت اور موصوف کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے صفت پھر موصوف. تو آپ کا ترجمہ ایسے آنا چاہیے, کل کی کل تعریف و شکر. کل کی کل پہلے مبتدا آپ نے کہا, خبر کا ترجمہ آ رہا ہے. کل کی کل تعریف اور شکر, نہایت رحم کرنے والا, بہت مہربان, تمام عالمین کا رب. یہ سب صفت ہو گئی اللہ ہی کے لیے. آپ کا ٹیکنیکلی ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ صفت کو پہلے لکھ کے آنا ہے, کل کی کل تعریف اور شکر, نہایت رحم کرنے والا, بہت مہربان, تمام عالمین کا رب اللہ ہی کے لیے. اللہ ہی کے لیے. اگلی والی آیت بھی کمپلیٹ کریں. مالک یوم الدین. مجھے مضاف تو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے مالک یوم الدین, جیسے مضاف یوم مضاف الیہ یا پھر مضاف مرکبی اضافی لگ رہا ہے پورا. پورے کا پورا یہ آپ کو پیچیدہ مراکب اضافی لگ رہا ہے نا. مالک یومی ایک ہے, مالک مضاف, اور یومی جو ہے یہ مضاف بھی ہے, یہ مالک کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا. اور پھر یوم الدین, تو یہ یوم جو ہے مضاف بھی ہے, اور الدین جو ہے وہ مضاف ہے. تو یہ پورے کا پورا پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. مالک یوم الدین کیا ٹرانسلیشن کریں گی؟ مضاف سے مضاف الیہ سے, قیامت کے دن کا مالک. قیامت کہاں سے لے کے آئیں؟ یوم دین, دین بدلے کے دن کا. ہاں, بدلے کے دن کا مالک, روز جزا کے دن کا مالک, روز جزا کے دن کا مالک. مجھے بتائیے, یہ بھی دیکھیں حالت جر میں, تو یہ بھی صفت ہو گئی. یہ اس کی صفت نمبر کون ہو گئی؟ یہ بھی اس کی صفت ربع ہو گئی. 4 صفتیں ہو گئی. اب کیا ترجمہ کریں گی؟ کل کی کل تعریف اور شکر, روز جزا کے دن کے مالک, نہایت کرنے والا, بہت مہربان, تمام جہانوں کا رب اللہ ہی کے. اللہ کتنی خوبصورت اس کی ٹرانسلیشن. عائشہ جی مزہ آیا؟
यस सर। मुझे बताइए दीन से क्या मुराद है? सर दीन बदले का दिन है ना, बदले का। हाँ, इसकी दलील क्या है? दलील मतलब आपने कहा दीन बदले का दिन है ना, डे ऑफ जजमेंट है ना, डे ऑफ जस्टिस है ना। जी जी। आपके पास इसकी दलील क्या है कि यहाँ दीन के माने डे ऑफ जस्टिस है? कुरान अपनी तफसीर खुद बयान करता है। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। तुम नहीं इदराक रखते कि दीन क्या है, वो दिन कौन सा है। अल्लाह बताता है ये दिन क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अमरु यौमइज़िन लिल्लाह। ये सूरा नंबर, तो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन ये जो आखिरी जुज है उसके अंदर ये मेरे ख्याल में सूरा नंबर होनी चाहिए 81 या 82 ऐसी। ये यौमुद्दीन क्या है? ये वो दिन है जिस दिन किसी की कोई बादशाहत नहीं होती, किसी का कोई चीज नहीं चलेगा। ये वो दिन है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये डे ऑफ जस्टिस है। डे ऑफ जजमेंट तो है ही, डे ऑफ जस्टिस है ज्यादा खतरनाक, डे ऑफ जस्टिस। ठीक है जी, क्लियर है जी? आयशा जी, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। सर ईया का मफूल है और मफूल मुकद्दम है, इस वजह से साथ ईया लगाया। इय्या क्या चीज है? सर मफूल है, इसमें का की जो जमीर है वो मफूल के लिए। का की जमीन मफूल है, तो इय्या क्या है? ईया का आपने बताया था, जब उसको मुकद्दम करना होता है तो साथ ईया लगा देते हैं, उसका अपना नहीं। कोई मतलब नहीं होता। इसको थोड़ा और बेहतर करें। इय्या का अपना कोई मतलब नहीं होता, यहाँ तक बात सही है। ठीक है, ये इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हसर का मफहूम पैदा करने के नहीं लिए। नहीं नहीं, नहीं नहीं, फिर भी बस मुझे इतना ये आइडिया कि ये मफूल के साथ अटैच करते हैं। वो तो सही है, वहां तक सर ये बात। जी जी बोले। ये का जो है इसको अटैचमेंट चाहिए इसलिए ईया लगाते हैं। ये जो जमीन है ये अटैच जमाने, जी इसको अलग से नहीं लिख सकते, इसको डिटैच नहीं लिख सकते जी। इसको का बेसिकली ये होना, असल में होना क्या चाहिए था? ना बुदू का। हाँ, बुदू का। इसको हमने डिटैच कर दिया, लेकिन जी जो कि ये अटैच जमायर है तो इसको मैं अलग से नहीं लिख सकता। अटैच जमायर को कभी भी अगर अलग से लिखना होता है तो उसके साथ या को अटैच कर देते, या के अपने कोई माना नहीं। ठीक है जी, तो इसको आप मफूल ही कहेंगे, और ये मफूल कौन सा कहलाएगा? मफूल मुकद्दम। मफूल मुकद्दम। क्या तर्जुमा करेंगे इसका? मफूल मुकद्दम का या का क्या तर्जुमा करेंगे? सिर्फ तेरी ही, तेरी ही। तेरी ही या सिर्फ तेरी ही। इससे क्या होता है, अगर मफूल को मुकद्दम कर दिया जाए तो दो चीजें पैदा हो जाती हैं, ताकीद भी आ जाती है और बाज़ दफा हसर भी आ जाता है। बाज़ दफा अगर इसको फेल से पहले ले आए ना, मफूल को अगर फेल से पहले ले आए तो हसर का मफहूम भी आ जाता है। हसर किसे कहते हैं, एक दफा बता दे ताकि सबको रिपीट हो जाए। हसर किसे कहते हैं? हसर जब किसी चीज पे एम्फसाइज करना हो तो उसको हसर में ले आते हैं। नहीं नहीं, एम्फसाइज करने के लिए तो ताकीद आ जाती है। हसर के क्या मान? कि उसको बाकी चीजों से अलग करके प्रोमिनेंट करना है। हाँ, एक चीज को दूसरे चीज के साथ खास कर देना या बांध देना। ठीक है, बांध देना। तेरी ही, सिर्फ तेरी ही, जिस तरह से भी दे। नाबुदू आपको क्या लग रहा है? नाबुदू फेले मुदारे जमा मुतकल्लम। फेले मुदारे जमा मुतकल्लम, फेले मुदारे जमा मुतकल्लम। इसका जरा मुझे बाब और मादा बताइए। इसका मादा है आइन बे दाल। अरबी में बे नहीं कहते, अरबी में क्या कहते आइन हैं? बा, बा आइन बा दाल। ठीक है, और मादा बताइए और बाप बताइए इसका। बाब नून। बाब नून। पहला पहला सीखा बताइए।
अबदा याबुदु, अबदा याबुदु, याबुदु, अब्दन, इबादन, अब्दन, नहीं अब्दन नहीं, इबादतुन, इबादतुन, इबादत करना। इबादत। नाबुदु क्या तर्जमा हो जाएगा? सर नाबुदु हम इबादत करते हैं तेरी, हम इबादत करते हैं। इया का नाबुदु का क्या तर्जुमा हो जाएगा? हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम सिर्फ हम मफूल सिर्फ को मुकद्दम करें, मफूल मुकद्दम है, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। तेरी ही हम इबादत करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि फेल मुदारे है ना, जी तो जी इसका जी तर्जुमा हाल मुस्तकबिल दोनों में होगा ना। और जी। ये तो एक ऐसा है कि जो हाल मुस्तकबिल में यहाँ को तर्जुमा करना चाहिए, तेरी ही हम इबादत करते हैं या करेंगे। अब मैं आपको एक यहाँ खूबसूरत एक नुक्ता देना चाहता हूँ, खूबसूरत नुक्ता। इसका आपने तर्जुमा क्या किया? इबादत करते हैं। इबादत एक ऐसी चीज है, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, ऐसे ही है ना। जी यही मादा ऐन बा दाल, अगर मैं इसको बाप काफ से कर दूं, इसको बाप किससे कर दूं? काफ, काफ से, तो इसका सीगा क्या बनेगा? अबुदा याबुदु, मुदारे का सीगा देखें सेम ही बना है, जी मुदारे का सीगा सेम ही बना। अबूदा याबुदु इबादतुन सेम ही रहे। अब आपको पता है इसका क्या माना है? नहीं, गुलाम, हाँ, इसका अब माना है गुलाम, इसका अब माना है गुलाम। और जब आप इसको बतौर गुलाम आप पढ़े तो फिर आपको इसका सही मतलब पता है। अब करें तर्जुमा। सिर्फ तेरी ही हम गुलामी करते हैं, करते रहेंगे। अब मुझे बताएं, गुलामी कभी कभार होती है, Continuous है। 24 घंटे की होती है कंटिन्यूअस है। गुलाम। और हम कौन है? हम सब गुलाम, हम सब गुलाम। किसके गुलाम है? अल्लाह के, अल्लाह के, रब, या रब्बुल आलमीन के, तो अर्रहमान। रब का जो सही तर्जुमा है वो है मास्टर। रब का अंग्रेजी में तर्जुमा क्या है? मास्टर, मास्टर। और मास्टर का ऑपोजिट क्या होता है? स्लेव, स्लेव, स्लेव। सर्वेंट। सर्वेंट नहीं होता। ओके, नौकर तो टेम्परेरी है, नौकरी करेगा, okay. 8 घंटे की नौकरी करेगा, तनख्वाह लेकर घर आ जाएगा। slave, तो हम जब तक अपने आप को गुलाम नहीं तस्वुर करते, हम उस रब को पहचान ही नहीं सकते। आप देखें जो आपकी जो गांव की जिंदगी होती है उसमें गुलाम ही होते हैं ना लोग, 24 घंटे के गुलाम है ना। उनको अगर उनका आका कह दे, उर्दू में आप रब को कहें आका, पालने वाला कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पालने वाली तो आपकी माँ भी है, आपकी माँ ने भी आपको पाला ना, आपके बाप ने भी आपको पाला ना, ऐसे ही है ना। जी पाला तो है ना उन्होंने। जी जी। रब के एक माँ ने पालने वाले की भी है ना, तो पाला उन्होंने। लेकिन जब आप उसको आका का तस्वर करेंगे तो बात ही कुछ और हो जाएगी। तो ईया का नाबुदु फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर क्या बनेगा? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। इसके अंदर फेल और फाइल दोनों शामिल, ठीक है। जी फेल प्लस फाइल इसमें शामिल, मफूल इधर आ गया, फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर बन गया जुमला फेलिया। कौन सा जुमला फेलिया बनाइए? खबरिया के इंशाइया। सर ये खबर ही है। खबर है ना, खबर है ना, जी गलत तो नहीं है। तो ये जी। बन गया खबरिया। आगे आ रहा है वाव। ये वाव क्या चीज है? हरफे अतफ, अगर ये अतफ है तो पीछे वाला जुमला क्या कहलाएगा? मातूफ अलैह। मातूफ, मातूफ अलैहि। जबरदस्त। अतफ दोबारा आ रहा है ईया का, ये ईया का तो बिल्कुल वैसे ही है, मफहूम खत्म। जी जी।
नस्तईनु क्या लग रहा है आपको? सर ये भी फेले मुदारे जमा मुतकल्लम, फेल मुदारे जमा मुतकल्लम। जमा मुतकल्लम। इसका मादा और इसका बाब बताइए। मादा इसका है आइन या नून या आइन वाव नून। जी, इसका मादा है एन वाव नून। आइन वाव नून। इसका बाब बताइए। इस्तफाल। जबरदस्त। इस्तफाल का पहला सीगा बनता है इस्तफाला यस्तफलु इस्तिफालन। और बाब इस्तफाल की खासियत क्या है? बाब इस्तफाल की खासियत क्या है? वो खासियत ज़हन में होगी तो तर्जुमा सही निकलेगा ना। बाब इस्तफाल की खासियत क्या है? पर्चा निकालें, फर्रा निकालें, फर्रा निकालें। ये सूरज हमने मुकम्मल करनी है इंशाल्लाह। जी, तलब पाई जाती है। तलब पाई जाती है। जबरदस्त। मांग, ऐसा फेल का जिक्र होता है जिसमें मांगने का या तलब करने का मफहूम होता है। अब ये ज़हन में रखते हुए इसका तर्जुमा होगा। अब एन वाव नून, इसका पहला सीगा बनाइए। हमेशा जब भी फेल आएगा आपने इसका मादा बाप निकाले, पहला सीगा बनाए। ये प्रैक्टिस करेंगे ना आप, खुद ब खुद आप कुछ अरसे बाद देखेंगी कि आपकी ग्रामर में कितना बड़ा फर्क आता है, कितना बड़ा फर्क आएगा, आप खुद देखेंगे। तो इस्तफाल से आयशा पहला सीगा बनाए, क्या बनेगा? आवाना यावानु। बात इस्तफाल है, क्या करती हैं आप? दायरा खालदा जी सीधी ट्रैक पे जाते आते भटक जाती हैं। जी आयशा, कंप्लीट करें इसको। नेट ड्रॉप हो गया। हाँ आयशा गायब हो गई। सर मैं आ गई हूँ, वो नेट मेरा ड्रॉप हो गया था। ठीक है मुदारे का सीगा। जी आयशा, इसका पहला सीगा बनाइए। सर इसका बनेगा इस्तवना थोड़ी सी यस्तवीनु। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलें। इस्तवना यस्तवीनु। इस्तावना, इस्तावना यस्तवीनु। यस्ताविनु। तब्दीली आएगी? जी आएगी इसमें। तब्दीली के आप थोड़ी, आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है, थोड़ा करीब से आके बोले। जी, तब्दीली के बाद सीगा क्या बन जाएगा? तब्दीली के बाद बनेगा यस्ताईनु। पहला वाला सीगा बताइए। यस। पहला वाला क्या बनेगा? इस्ताना इस्ताना यस्ताईनु। यस्तईनु। और इसका मज़दर क्या बनेगा? इसका मज़दर क्या इस्तेआनुन। जी, इस्ताअनतुम, क्योंकि सर इस्तेआनु। नहीं, आपको मैंने बताया ना कि जब भी हुरूफ इल्लत अगर मजीद थी कि उसमें आ जाता है, मजीद थी में जब भी हुरूफ इल्लत वाव या या आ जाए तो फिर हम जब मज़दर बनाते हैं तो आखिर के अंदर ता मरबूता लगाते हैं। सर वो लाम कलमे का नहीं था सिर्फ?
लाम कलमे का में हम ता मरबूता नहीं लगाते, वहां हमजा लगाते, वहां हम हमजा लगाते। अगर ऐन कलमे में हो, अजवफ हो, तो फिर ता मरबूता लगाते। अच्छा ठीक है तो जी। नस्तईनु ये फेल फाइल मफूल मुकद्दम से मिलकर जुमला फेलिया हो गया, और ये जुमला फेलिया क्या बन जाएगा? मातूफ। ये जुमला फेलिया मातूफ, और मातूफ इलैह मिलके बात मुकम्मल कर देंगे। मातूफ इलैह मिलके बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बिद्दत कहते हैं। बिद्दत ये है कि हम उसको फिर कहते हैं जुमला मातूफिया हो गया। तो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईनु क्या तर्जुमा करेंगे पूरा? सिर्फ तेरी ही हम गुलामी करते हैं और सिर्फ तेरी ही इसका तर्जुमा क्या? बताइए, आप जरा गौर फरमाइए। तेरी ही हम इबादत करते हैं या गुलामी करते हैं, और तुझ ही से हम मांगते हैं या मांगेंगे। तुझ ही से हम मांगते हैं या मांगेंगे। मुझे बताइए क्या रवैया आपका? ऐसे ही है? हर एक से मांगते फिरते हैं। तो फिर क्या होगा? दफा बात करते हैं। आपको पता है कि सैयदना अली के बारे में एक बात आती है कि जब अजान होती थी तो कहते हैं कि सैयदना अली का चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपका अजान होती है चेहरा पीला पड़ जाता है। फरमाया कि रब मेरा बुलाता है, रब मेरा मुझे बुलाता है। दिन में इतनी दफा, 17 दफा, 5 दफा कॉल आती है, और उसके बाद मेरे मामला वैसे की वैसी। ये कौन बात कर रहा है? ये सैयदना अली बात कर रहे हैं, जो अशरा मुबशरा के अंतर्गत हैं, जिनको जिंदगी में जन्नत की बशारत दे दी गई, और उनका ये हाल है। और हमारा ये हाल है कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूँ अनुभव के शहर। यानी हमारा तो ये हाल है कि जिससे हमें डर लग जाए वही हमारा भगवान है, और जिससे हमें लगे हर शख्स से, उससे हम अपनी डिमांड भी रखते थे। अल्लाह ताला ने जो है वो इस चीज के लिए मना नहीं किया कि आप लोगों को अपना वसीला वसा ना बनाएं, लेकिन उस पर तवक्कल करने से मना। असबाब इख्तियार करने का मना नहीं है, लेकिन असबाब के ऊपर पुल कर लेना, असबाब पे जो है वो तवक्कल कर लेना, उसमें गड़बड़। इस चीज का ख्याल रखिए, असबाब पे तवक्कल नहीं होना चाहिए। सना जी मौजूद है आप? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जी सना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना क्या लग रहा है आपको? एहदिना सर फेले अमर लग रहा है मुझे। नहीं, आप पहले से आइडेंटिफाई करें इस्म, फेल और हर्फ। इहदिना आपको जी क्या जी लग रहा है? फेल लग रहा है। फेल और ना इसके साथ इस्म की ज़मीर। जी ठीक है। अस्सिराता क्या लग रहा है आपको? अस्सिराता सिफ्त लग रही है सर। नहीं, सिर्फ मौसूफ सॉरी। सिर्फ ये बताइए, इस्म लग रहा है, फेल लग रहा है कि हर्फ है? इस्म। जबरदस्त। और अल मुस्तकीमा? ये भी इस्म लग रहा है।
पहली चीज आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई किया करें। ये तो मैं अभी आपको ऐसे करा रहा हूँ, आगे जाके ऐसे नहीं कराऊंगा, आगे जाके आप ये खुद चीजों को करेंगे इंशाल्लाह। अब मुझे बताएं कि इहदिना क्या लग रहा है? इहदिना सर फेले अमर। फेले अमर लग रहा है। फेले अमर कौन सा वाला लग रहा है? वाहिद, मुसन्ना, जमा? जमा मुतकल्लिम। जमा मुतकल्लिम, फेले अमर, फेले अमर जमा नहीं मुतकल्लिम। नहीं तो नहीं 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 सर, ये हाजिर के। फेले अमर जो जी जी है सर, ये किसको दिया जाता है? अमर किसको दिया जी जाता है? ये सर हाजिर के सीकों से बनता है, तो इसलिए जमा ये मुतकल्लिम तो हाजिर के सिगा नहीं होता। नहीं जी, तो ये क्या हो जाएगा? फेले ये अमर जमा हाजिर के सीखे में। जमा हाजिर का सीगा है। अच्छा जी, फेले अमर बनता किससे? फेले मुजारे से। फेले मुजारे से। मुझे आप एहदी का वो बता सकती हैं, मादा बता सकती हैं? हा दाल हाँ। या, हाँ दाल या, हाँ और या? दाल और या। हाँ दाल या। इसका भाव आपको पता है? नहीं सर। इसका बाब है मेरे ख्याल में, इसका बाब होना चाहिए बाब दौर। बाब दाद पे अगर इसका मैं सीगा बनाऊं तो क्या बनेगा? हादा या यहदियु, यहदियु। यहदियु तब्दीली आएगी कोई इसमें? सर इसमें वो जो नाकिस है ना, हर्फ इल्लत है जो कि लाम कलमे पर आ रहा है, और वो मदमूम है या मदमूम है या दियू। पहले इसका बताइए ना, तब्दीली आएगी कोई इधर? जी क्या आएगी? क्या तब्दीली आएगी और क्यों आएगी? सर इसमें यानी इसका फेले अमर बनाने के लिए आप पूछ रहे हैं? नहीं, पहले मुझे सिर्फ बताइए हादा या यहदियु, इसमें कोई तब्दीली जी नहीं, इसमें नहीं आएगी। नहीं सर, इसमें नहीं आएगी। कोई तब्दीली नहीं आएगी? नहीं। अच्छा जी, रुक जाइए, आप अपनी जगह पर रुक जाइएगा, आयत मैं आपसे ही करवाऊंगा। मेजर साहब, हादा या यहदियु, क्या ये दुरुस्त सीगा है कि इसमें तब्दीली आएगी? सर के अलिफ मकसूरा में चेंज हो जाएगा। अलिफ मकसूरा में तब्दील हो जाएगी, वजह क्या है? इसमें जो है ना, हर्फ इल्लत के पीछे माक़बल फतह है। हर्फ इल्लत मुतारिक हो, मा कबल फतह हो, तो फिर हुरूफ इल्लत अगर या हो तो अलिफ मकसूरा में तब्दील हो जाती है, और वाव हो तो पूरे अलिफ में तब्दील हो जाती है। तो ये हदा या से क्या बन जाएगा? हदा। हदा या से क्या बन जाएगा? हदा। और यहदियु में तब्दीली आएगी? जी सर, यहाँ पर आएगी। दोनों जगह आएगी ना, देखिए पहली भी आई जी। ना, यहाँ क्या तब्दीली आएगी? जी इसमें सर मदमूम या से पहले कसरा आ रहा है, तो हम या को साकिन कर देंगे। जबरदस्त, ये हो गया यहदी। अब आपने कहा फेले अमर किससे बनेगा? फेले मुदारे से बनेगा। फेले मुदारे का सीगा बताइए, क्या बनता पहला सीगा? यहदी से फिर क्या बनेगा? यहदियु। नहीं, यहदी का सीगा बनाइए ना, फेले मुदारे का सीगा बनेगा हाजिर का। पहले मुजारे, अच्छा एक मिनट सर। बोले घबराए नहीं, घबराना नहीं है। मेजर साहब तहदी, आपका सीधा बना तहदी। अब आपने इससे आपने क्या बनाना है? अमर बनाना है। पहले अमर बनाने के लिए पहला काम क्या करते हैं? इसको अखफ कर देंगे। अखफ करते हैं, ये तो पहले से ही अखफ है जी। जब ये पहले से ही अखफ हो तो क्या करते हैं, उस पूरे सीगे को उड़ा देते हैं, ताकि पता चल जाए कि यहाँ या वाव था। जब भी याद रखिएगा, या वाव अगर ये पहले से मजूम हो और उसके ऊपर अगर आपने कोई अवामिल करना हो
تو پھر یا واو کو ڈراپ کر دیتے. ٹھیک ہے, تو رہ گیا تحقیق. دوسرا کام کیا کرنا ہے, علامت عرب کو ڈراپ علامت کر. مضارع کو ہٹا دیں گے. جی پڑھنے میں نہیں آ رہا, پڑھنے میں نہیں آ رہا. نہیں, حمزۃ الوصل لگایا. حمزۃ الوصل. جی. جی اب مجھے بتائیے کون سا صیغہ ہے, کون سا صیغہ ہے یہ سر جمع نہیں, واحد مذکر حاضر. سے یہ جمع نہیں تھا. آپ جی کو جمع واحد. پڑی ہوئی, ٹھیک. آپ کو جمع کے چکر میں مجھے ساری ایکسرسائز کرنی پڑی. فعل امر واحد مذکر حاضر. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جی. اس کا فاعل کیا ہے, اس کا فاعل کیا ہے؟ انت. انت واحد مذکر حاضر انت. اہدی کیا ترجمہ کریں گی؟ تو مدد مانگ. نہیں, اہدی. ہدایا یہدیو, تو ہدایت. تو جی, ہدایت تو کرنا. ہدایت. جی. اہدی تو ہدایت دے, تو اچھا. ہدایت دے. تو ہدایت دے کسے؟ نہ کیا بن جائے گا, نہ کیا بن جائے گا؟ ہمیں. ہاں, تو یہ نہ کیا ہے, ہمیں تو ہے, لیکن کیا چیز ہے نا؟ مفعول. مفعول. کیا ترجمہ ہوگا؟ تو ہمیں ہدایت دے. تو ہمیں ہدایت دے. آپ نے اس کا ترجمہ یہ کیوں نہیں کیا کہ تو ہدایت دے ہمیں؟ آپ نے یہ ترجمہ کیوں دیا تو ہمیں ہدایت دے؟ سر پہلے مفعول آتا ہے ترجمے میں. نہیں, آپ یہ کہیں کہ پہلے فاعل آتا ہے پھر مفعول آتا ہے پھر سب سے آخر میں آتا ہے. ترجمہ آپ نے بالکل درست کیا. تو فاعل ہو گیا نا, تو جی, تو فاعل ہے, اس کے بعد مفعول ہے, اس کے بعد ہمیں جی ہمیں ہدایت دے. تو ہمیں فعل اب ہدایت آخر دے. میں. تو ہمیں ہدایت دے. آگے آ رہا ہے الصراط المستقیم. الصراط المستقیم. کیا لگ رہا ہے جی سر, یہ مرکب توصیفی لگ رہا ہے مجھے. مرکب توصیفی لگ رہا ہے. اس کو آپ کے موصوف, اس کو آپ کے صرف. موصوف اور صرف مل کے مرکب توصیفی ہو کے کیا بنیں گے ادھر؟ موصوف اور صرف ہو کے کیا بنیں گے؟ مفعول. کیسے پتا چلا مفعول ہیں؟ کیسے پتا چلا سر مفعول ہیں؟ سر یہ اس لیے کیونکہ حالت نصب میں. مفعول تو گزر چکے ہیں نا. حالت نصب میں. زبردست, باتیں ختم ہو سر گئی. حالت نصب میں باتیں ختم ہو گئی, یہ مفعول بن گئے. اب ایک مفعول پہلے بھی آیا تھا, یہ بھی مفعول آ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول اول ہوگی اور یہ مفعول ثانی. فعل اپنے فاعل اپنے مفعول دونوں مفعول سے مل کے کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ. انشائیہ. انشائیہ. کیا ترجمہ کریں گی؟ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. مجھے بتائیے صراط کے کیا معنی ہیں؟ راستہ. راستہ. صراط کے معنی ہے راستہ, خالی راستہ کہ سیدھا راستہ؟ سیدھا راستہ, بالکل اسٹریٹ. ہاں جی. مستقیم کا کیا معنی؟ مستقیم کا مطلب بھی سیدھا ہے سر. ایک دفعہ پہلے آپ نے بتایا تھا کہ جو صراط وہ والا راستہ ہوتا ہے جو اوپر کو جاتا ہے. جی. الصراط یہ بھی سیدھا ہے. الصراط میں تین چیزیں آتی ہیں, سیدھا, چوڑا, دشوار. مستقیم کے بھی معنی سیدھا ہے. قام یقوم, اقامت, کھڑا کرنا, سیدھا کرنا, اقامت. ٹھیک ہے.
नमाज कायम करना, कहते हैं ना इकामत, खड़ा कर देना, ये भी सीधा है। लेकिन मुस्तकीम का मतलब है सीधा किस तरफ, ऐसा सीधा ऊपर की तरफ, ऐसे रास्ते की तरफ हिदायत दे जो सीधा है और ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ क्यों मांगा है आपने, क्या वजह है? आखिरत के लिए, जी आखिरत की वजह से अल्लाह के पास जाना, अल्लाह के लिए। ऊपर कौन है, ऊपर कौन है? अल्लाह। अल्लाह। ऐसा रास्ता दे जो हमें तेरी तरफ लेके जाता है, उस रास्ते की तरफ हिदायत दे जो हमें तेरी तरफ लेके जाता है। जब इंसान ऊपर की तरफ जाएगा तो उससे उसका होगा क्या? अल्लाह के करीब जाएगा, जब अल्लाह के करीब जाएगा तो उसका दूसरा इफेक्ट क्या है? जन्नत में जाएगा। नहीं, सब लोगों से effect बताइए ऊपर दूसरा। होगा, बाकी सब लोगों से ऊपर होगा। नहीं, ये तो मेरा और आपका फैसला नहीं है ना। अल्लाह से जब ताल्लुक आप पैदा, अल्लाह के करीब होंगे तो क्या होगा, इसका दूसरा इफेक्ट क्या है? अल्लाह से ताल्लुक फकीर से पैदा। दूर होंगे, नीचे से दूर हो दूसरी जाएंगे। चीजें छोटी नजर आएंगी। जी, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो आपने तकब्बुर हो जाएगा, दूसरी चीजें छोटी नजर आएंगी। फिर आपको मैं छोटा नजर आऊंगा तो आपने तकब्बुर हो। कनेक्शन मजबूत हो आयशा भी आपने कुछ कहा था, आपने क्या कहा था आयशा? सर जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे से दूर हो जाएंगे। नीचे नीचे जो क्या चीज है? दुनियावी चीजें, दुनिया। जितना आप अल्लाह के नजदीक जाएंगे दुनिया से दूर होते चले जाएंगे। आप फिजिकली अपनी दुनिया में ही है, लेकिन आपकी मोहब्बत जमीन की जिंदगी से खत्म हो जाएगी। तो ये दुआ क्यों मांगी जा रही है? एक दफा हो गए करीब, क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता गिर गए तो क्या होगा? हशर जितनी हशर ऊंचाई से गिरेंगे उतना ही बुरा हशर होगा ना आपका। तो आप अल्लाह से दुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी आखिरी नमाज में यही दुआ मांगी होगी ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ा होगा ना। हम और आप तो पढ़ ही रहे हैं ना, समझ के थोड़ी पढ़ रहे हैं। यही तो आपको पता है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि सूरह फातिहा अल्लाह ताला ने कहा ये बैन बैन है मेरे और मेरे बंदों के दरमियान। तो जिसमें पहली 3 आयतें जो थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये 3 आयतें अल्लाह के लिए थी। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट था, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अल्लाह से। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? इय्याका नअबुदु व इय्याका कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट को रोज हम इसके बरख से उड़ाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के मैं और आप रोज परख्चे उड़ाते हैं। और फिर आपने उसके बाद उस अल्लाह से कहा कि हमें हिदायत दे उस रास्ते की तरफ जो तेरी तरफ लेके जाता है। मेरा एक सवाल है यहां आपसे, मेरा और आपका असल मकसद क्या है? असल मकसद क्या है? हम सब ये सारी मेहनत कर क्यों रहे हैं? मिलना है, जन्नत हासिल करना। जन्नत। आपने दुआ, हमने यहाँ दुआ डायरेक्ट जन्नत हासिल करने की नहीं मांगी। नहीं, जन्नत मांगते हैं अल्लाह से करीब होने के लिए। समझ जाए हम कुरान शरीफ को। अरे नहीं, लेकिन मेरा और आपका असल मकसद तो जन्नत का उसूल है ना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम की जगह सीधा सीधा ये मांग लेता अल्लाहुम्मा जअलना, मांग लेते जन्नत, अल्लाहुम्मा जअलना जन्नत, अल्लाह हमें अहल बना दे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना जन्नत, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा। शैतान के चालों से है ना। हाँ, अगर हम अल्लाह मियाँ के रास्ते पर रहेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह मियाँ जन्नत तो दे ही देंगे। इसने तो अल्लाह मियाँ रहीम है। बात तो अल्लाह के साथ मियाँ ना लगाया करें। तलत जी, अल्लाह के साथ मियाँ ना लगाया करें। सॉरी जी सर, वो आदत है। चले, अल्लाह ताला ने हमें एग्जाम, आदत से निकल आएंगे जी। अल्लाह ताला ने हमें एक एग्जाम के लिए भेजा है दुनिया में, उस एग्जाम में हमें पास करा दे और हमें उसमें से आसानी से निकाल दे। इस वजह से हम सिरात, तो ठीक है, लेकिन उसके डायरेक्ट जन्नत मांगते हैं ना। नहीं, लेकिन हम उस एग्जाम को आसानी से गुजारना चाहते हैं, इसलिए हम ये दुआ मांगते हैं। मुझे एक बात बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है, आपने फरमाया कोई शख्स भी अपने अमाल से जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जी। एक सहाबी ने जुर्रत करके पूछा, अल्लाह के रसूल आप भी? कहने लगा मैं भी। जी।
तो हम में से तो कोई आदमी भी एग्जाम पास करके भी जन्नत नहीं जा सकता। जन्नत तो अल्लाह के रहम से जाएंगे, अल्लाह के फजल से जाएंगे। अरे अल्लाह ने जो हमें अभी ये हमारे साथ इतने सारे डॉक्टर बैठे हैं, ये हमारे साथ जो है वो सना भी डॉक्टर हैं, आयशा भी डॉक्टर है, कोई एक आध और भी होगा मुझे नहीं मालूम, इन दो के बारे में तो मुझे मालूम। इन सबको मालूम है आज के दौर में जो सबसे महंगी तरीन चीज जो और जो इसकी सबसे ज्यादा कदर हो रही है वो है ऑक्सीजन, है ना? ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है ना? अवेलेबल नहीं है, बल्कि तलत जी आपको भी मालूम है, आप खुद भी इस प्रोफेशन। जी सर। और अल्लाह ताला हमें जब से पैदा हुए तब से फ्री ऑफ चार्ज ऑक्सीजन दे रहा है कि नहीं दे रहा? जी सर दे रहे तो हैं। हमें तो अल्लाह कहते हैं तुमको मैंने पूरी जिंदगी जो 65 साल 70 साल जिंदगी दी थी ना, उसका एक पैसा भी चार्ज नहीं किया था, जाओ अब दोज़ख में, क्या करेंगे? ये वो चैलेंज है जो शैतान ने किया था, और शैतान ने यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लअक़उदन्ना, मैं जरूर ब जरूर बैठूंगा, लहुम, उनके लिए, सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते में। तो ये सीधा रास्ता है क्या? ये सीधा रास्ता है अल्लाह की किताब। इसीलिए अल्लाह ने फिर कहा था, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब अल्लाह ताला ने कहा था ना आदम को और उसको, इहबितू, उतर जाओ यहाँ से, तो फिर अल्लाह ताला ने साथ साथ ये भी बताया था कि जब जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत है मिन्नी, तो क्या करो, जिसने उसकी पैरवी की उसको ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत के अंदर जब कहा ना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह ताला ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको खत्म कर दिया। आपको खौफ किस चीज का होता है? खौफ किस चीज का है? खौफ किस सर चीज का है? अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह की नाराजगी, रास्ते से भटकने का। खौफ किस चीज? अभी मुझे एक बात है, कोरोना हो रहा है, कोरोना में खौफ किस चीज का है? मरने का, जान का, जान मरने का, मरेगा कब आदमी? जब लिखी हुई आएगी, नहीं, मरता कब है आदमी? जब सांस बंद हो जाता है, ना जी बड़ा दिल बंद हो जाता है। नहीं 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 नहीं, मरता कब है आदमी? माजी में मरता, हाल में मरता, मुस्तकबिल में मरता है। मुस्तकबिल में, तो खौफ किस चीज का होता है? मुस्तकबिल का, और गम किस चीज का होता है? पास्ट का। पास्ट का। अल्लाह ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको बेड़ागर कर दिया एक आयत के अंदर, राइट। सबको सुना दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा सिर्फ एक काम करना, जब जब मेरे पास से कोई हिदायत आए उसकी पैरवी करो, ना तुम पे कभी को गम आएगा ना तुम पे कभी को खौफ आएगा। हम करते ही नहीं, हम करते ही नहीं। हमें इसी चीज का डर होता। हमारा अभी दोपहर का खाना खत्म नहीं होता तो एक सवाल आता है, ये बताए रात में क्या खाना है? रात का खाना खत्म नहीं होता, वो कल क्या पकाना है? यही है ना हमारी जिंदगी। हम तो इसी में उलझे हैं। हमारा एक वीकेंड आता नहीं है जिस वीकेंड पे आप संडे वाले रोज या सैटरडे वाला रोज अपने बीवी बच्चों के साथ होते हैं, टेबल पर उठने से पहले एक सवाल होता है, अगले वीक कहाँ जाएंगे? तो हमारी तो जिंदगी का सोच और महवर ही बहुत लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को उठाया ही नहीं उसका। मेजर साहब, तो इस आयत का पूरा तर्जुमा करें सनत, ताकि अगली वाली आयत करें। मैं चाहता हूँ आज ये आयत इस सूरह को खत्म करें इंशाअल्लाह। तू हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे। तू हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे। मेजर साहब अगली आयत पढ़े। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। जी, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। क्या लग रहा है आपको? सिरात क्या लग रहा है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा। सर नहीं नहीं,
जी मेजर साहब, शराब क्या लग रहा है? इसम इसम। अल्लज़ीना क्या लग रहा है? ये इसमें मौसूला है। मौसूला वसूला छोड़ दे, इसम फेल हर्फ। अल्लज़ीना इसम इसम। अनअमता क्या लग रहा है आपको? ये फेल। फेल। अलैहिम क्या लग रहा है आपको? ये भी अलैहिम, गौर करें, दो लफ्ज हैं इसमें, दो लफ्ज इसमें दो मुफरद हैं। अलैहिम फेल फेल फेल, गौर करें, अलैहिम। अलैहिम दो चीजें इसमें, गौर करें थोड़ा सा। अलैहिम, अलैहिम जी। ये मदद करें मेरे आलिम साहब की, मेजर साहब की को मदद करें। हर्फ और इसम। एक हर्फ है, एक इसम है। एक हर्फ है, हर्फ कौन सा इसमें? अला अलई हर्फ है, अला। अला हर्फ है और हिम इसम। जी मेजर साहब, सिरातल लज़ीना क्या लग रहा है आपको? दोबारा बताइए सर। सिराता क्या लग रहा है आपको? ये तो इसमें है ना सर, शराब। इसम तो है, लेकिन आप इसम तो हो गई, अब नेक्स्ट पे आए। ये इसम यहाँ बताओ क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, गौर करें। सिरात तो आपने इसम का, जब कोई ऐसा इसम नजर आए जिसके ऊपर अलिफ लगा ना हो, जिसका इराब हल्का हो, तो क्या गालिब गुमान है, क्या बन सकता है वो? मुब्तदा। हैं? मुद्दाफ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मुदाफ। मुदाफ। ये मेजर साहब और तलत जी, आप लोगों की तो रिश्तेदारी है आपस में। सॉरी सर, अब नहीं बोलूंगी। नहीं, मुझे एक वैसे बात पूछना चाह रहा हूँ, तो रिश्तेदारी है आप लोगों की? नहीं सर। चलिए ठीक है, क्योंकि मैंने महसूस किया है, ऐसा लगता है मुझे कि आप दोनों एक दूसरे को डिफेंड करना हमेशा कूटते हैं। हिस्ट्री है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री यही बताती है। अच्छा जी, सिरात मुदाफ, इसका मतलब अगला हिस्सा मुदाफिल है, ठीक है, अगला हिस्सा मुदाफिल होगा। अब ये मुदाफिल को आप जरूर देखें। अल्लज़ीना आ रहा है, अल्लज़ीना क्या चीज है? मौसूला। मौसूला है। मौसूला को क्या चाहिए होता है? सिला। अनअमता क्या लग रहा है आपको? अनअमता आपको क्या लग रहा है? फेल लग रहा है। आपने शुरू में कहा ना फेल, कौन सा फेल लग रहा है? तो बहुत आसान है इसको पहचानना, इस फेल को पहचानना बहुत आसान है। कौन सा वाला फेल है? मुदारे वाहिद। फेल मुदारे, फेल मुदारे। फेल मुदारे लग रहा है आपको? नहीं, अलिफ अलिफ लगा है। नहीं, अलिफ आ रहा है तो अलिफ तो किसी दूसरे बाप की वजह से भी आ सकता है। फेल को पहचानना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीजों को पहचानने की कोशिश करें। जिस फेल में ता साकिन आखिर में आ जाए, क्या पहचान है ये? ता साकिन किसकी पहचान है? ता साकिन कौन से वाले सीखे में आता है फेल के? ता साकिन फेल के कौन से सीखे में आता है? फालत, फालत कौन सा सीखा है? वाहिद मुअन्नस वाहिद मुअन्नस गायब। गायब। वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद माजी मुअन्नस वाहिद मुअन्नस गायब, फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब। ता फता, ता फता कब आता है? माजी पहले हाजिर वाहिद माजी वाहिद मुज़क्कर हाजिर। हाजिर। ता कसरा, पहले माजी वाहिद मुअन्नस हाजिर। वाहिद मुअन्नस हाजिर। ता दम्मा, पहले माजी वाहिद मुतकल्लिम।
मुतकल्लम, तो हमेशा याद रखें फेल डिफाइंड हो गया। ता देखें, ता में तो ये 4 हरकत को ध्यान में रख लें। ता साकिन वाहिद मुन्नस गायब, ता फता वाहिद मुन्नस वाहिद मुज़क्कर हाजिर, ता कसरा वाहिद मुन्नस हाजिर, ता दम्मा वाहिद मुतकल्लिम। ये कौन सा सीगा हो जाएगा? फेल माजी वाहिद मुज़क्कर। वाहिद मुज़क्कर क्या है? जरा बोले। वाहिद मुज़क्कर हाजिर। फेल माजी वाहिद मुज़क्कर हाजिर। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं है। इसका फाइल क्या होगा? इसका फाइल क्या होगा? हाजिर। हाजिर का क्या होगा? हाजिर। जी अंता अंता। अंता। अब सवाल आया मेरा, इस अंता का माजी मादा बताइए, बाप बताइए। अलिफ आ रहा है शुरू में, बहुत आसान है इसका बाप बताना। नून आइन मीम बाबे ऐन काफ। मीम। नून ऐन मीन और बाब इफ़ा। ये अलिफ आ जाना बहुत आसान हो गया। ठीक तो है। नून ऐन मीम बाब इफ़ाल, पहला वाला सीगा क्या बनेगा? अनआमा। अनआमा। पहला सीगा बनाइए। अनाम। अनाम। अनामा। अनाम क्यों बनेगा? अनामा। अनामा मुदारे का सीगा बनाइए। यनइमु। यन युन्निमु। युन्निमु। अनामा युन्निमु, मतलब बताइए। इनआम। हैं? इनामुन। इनामुन, इनाम करना। अनामता। अलैहिम क्या लग रहा है आपको? अलैहिम क्या लग रहा है? अलैहि। अलैहिम क्या लग रहा है? मुरक्कब। कौन सा मुरक्कब? अला है ना, अला जा रहा। अला जा रहा है और ये मजरूर क्या बन जाएगा? ये जार मजरूर मिलके जारी। जोर से बोले, घबराए नहीं। मुरक्कब जारी, लेकिन यहाँ पे मुरक्कब जारी, और ये मुरक्कब जारी है क्या बन जाएगा? ताल्लिक। मुताल्लिक बन जाएगा फेल के। ये मुरक्कब जारी इस फेल के मुताल्लिक बन जाएगा। फेल अपने फाइल और अपने मुताल्लिक से मिलके क्या बनेगा? जुमला फेलिया। जुमला जोर से बोले, आज आप घबरा के बोल रहे हैं बहुत। जुमला फेलिया। जुमला फेलिया कौन सा? खबरिया का इंशाइया इंशाई। है? इसमें तलब क्या है? तलब यही है ना कि हमने एक रास्ते को या एक अरे आप फ्रेंच में क्यों जा रहे हैं? अनमता अलैहिम की बात हो रही है। इसमें कहां से आ गया तलब? कहां से आ गया अनमता अलैहिम? जुमला फेलिया आपने इसको बनाया ना, अनमता अलैहिम को बनाएगा, लजीना सिरातल लजीना को बनाया जुमला फेलिया। अच्छा, आपने किसको बनाया जुमला फेलिया? अच्छा, अगर इस अनंता अलैहिम को कह रहे हैं तो फिर जुमला फेलिया खबर। अरे मैं मुझे छोड़ दे, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बताइए आपने जुमला फेलिया किसको बनाया? आपने जुमला फेलिया किसको बनाया? ये अनअमतु अलैहि। तो अनअमतु अलैहिम में मुझे बताएं तलब कहां से आई? इस जुमला फेलिया, ये जुमला फेलिया कौन सा है? खबरिया। खबरिया। देखिए जो जितना बात हो रही है उतने पहले अपने आप को कंफ्यूज नहीं करे बिला वजह। खबरिया, ये जुमला फेलिया खबरिया इस मौसूला के लिए क्या बन जाएगा? सिला। सिला बन जाएगा। और ये सिला और मौसूला मिलके क्या बनेंगे इस मुदाफ के लिए? क्या बनेंगे? मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह बनेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, ये मुदाफ और ये मुदाफ इलैह मिलके क्या बनेंगे? मुरक्कब इजाफी। मुब्तदा।
मुब्तदा, जबरदस्त। मुब्तदा की क्या कंडीशन होनी चाहिए? सर अगर ये मुरक्कब इजाफी हुआ तो फिर ये मारफा तो हो गया, मारफा और रफा दो चीजें होनी चाहिए। तो रफा है, सर यही तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये नहीं फिर है ना। मफूल इसको मफूल छोड़ होना दें। चाहिए, फिर इसको छोड़- मफूल आना चाहिए। एक मिनट रुक जाए ना, धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे। अच्छा अच्छा सही। मुब्तदा तो नहीं हो सकता ना? नहीं, मुब्तदा आप क्या नहीं। दूसरी चीज आपने क्या की, क्या होगा? अब दूसरी ये देखना है इसमें कि मफूल है या नहीं है। नहीं, आप ये नहीं देखें, आप चीज को थोड़ा सा एनालाइज करें, और एनालाइज हमने किस चीज से करना है कि जब हमने अपनी ग्रामर की इब्तिदा की थी तो सबसे पहली चीज ग्रामर में हमने क्या पढ़ी थी? सबसे पहले हमने हरूफे हिज्जा पढ़े थे, फिर हमने इस्म पढ़ा था, और इस्म में हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी थी, 4 चीजें। सबसे पहली कंडीशन कौन सी पढ़ी थी? सर अदद, जिन्स, एराब, सबसे एराब। पहली हमने पढ़ी थी एराब। अच्छा सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? आयशा जी मेरे ख्याल है उन दिनों आप नहीं थे हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं थी। हाँ, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी एराब। और एराब जब हमने शुरू किया था तो मैंने आपको उस वक्त कहा था कि एराब दरअसल अरबी बनाती है, एराब से हम अरबी बनाते। एराब हमें डिफाइन करके देता है। एराब है क्या? एराब की तारीफ किया है, इसम की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या उसकी हालत की तब्दीली एराब है जी। जेर जबर पेश एराब नहीं है, जेर जबर पेश हरकत। एराब की 3 हालतें, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। ठीक है, इस्म की बुनियादी हालत हमेशा हालत रफा है जी। नसब या जर होगा तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी जी। ठीक है। कब कब इस्म हालत नसब में जाता है, कब कब हालत जर में जाता है, वो सब आपको मालूम है। जी। इस वक्त आप मुझे बताएं कि ये मुदाफ और मुदाफ इलैह में असल अहमियत किसकी है? मुदाफ की है। मुदाफ की। जी। इसको तो हम यही कहेंगे ना, अल्लज़ीना मौसूला है, तो हम इसको महला नहीं कहेंगे ना मुदाफ हालत जर में। ये जी। जी। हालत जर में, ठीक है, क्योंकि होता है हालत जर में। जी। असल अहमियत मुदाफ है, मुदाफ है हालत नसब। अब आपने देखना है कि ये हालत नसब में क्यों है। हाँ जी। हालत नसब में क्यों है? हालत नसब में होने की वजह आपके जहन में आप दोहराएं, तो अब आप मुझे बताएं कोई वजह आपको मिलती है? क्या मिल सकती है? आपने लफ्ज इस्तेमाल किया मफूल। जी। मफूल हो सकता है ना। अब सवाल ये पैदा होता है अगर ये मफूल है तो ये इसका फेल किधर? सर ये पिछले वाले फेल के साथ तो नहीं आ रहा कहीं, उसी का मफूल तो नहीं है? गौर करें जैसे ना। एहदिना मफूल किया था ना वहां पे, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसी की एक्सप्लेनेशन है ये, उसी की वजाहत हो सकती है, उसी सिरात की बात हो रही है ना। हाँ, तो ये दरअसल ऐसी सूरत में आप उसको क्या कहेंगे? सिर्फ नहीं, सिर्फ नहीं, पीछे से उसकी सिर्फ नहीं, आगे एक्सप्लेनेशन आ गई। नहीं, सिर्फ अगर होगी तो बन नहीं पाएगा ना। अच्छा ठीक है। तो नहीं बन सकता कि सिर्फ अगर हो तो मौसूफ तो अलिफ लाम के साथ है। अच्छा ये है, मफाइल में तो नहीं हमने किया इसको, हाल तो नहीं बता रहा। मफूल आपने कहा, मैं एग्री कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा जी सही। मफूल आपके साथ एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा मफूल बनेगा कैसे, उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं ना। जी। आपने इसको कहा कि मैं इस सिरात के साथ रिलेट करता हूँ, मैंने एग्री कर लिया आपको। जी। आपने कहा मैं इसको उसके सिर्फ बना दूं, सिर्फ नहीं बन सकती। इसलिए नहीं बन सकती कि मौसूफ अलिफ लाम पे आ रहा है, तो ये किस पे अलिफ लाम आ रहा है। हाँ जी जी, ये नकरा आ गई। अब ये क्या चीज आपको मैंने बताया था, एक चीज अगर याद करें, रिकॉल करें, एक चीज मैंने आपको बताई थी जिसको हम कहते हैं तवाबे। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं तवाबे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जितनी ग्रामर आपने पढ़ी है वो, और जितनी नहीं पढ़ी वो सब आपके सामने इंशाल्लाह आती रहेगी। तवाबे 4 होते हैं, तवाबे 4 होते हैं। सबसे पहला होता है जिसको हम कहते हैं सिर्फ। पहला जो तवाबे वो क्या है? सिर्फ। सिर्फ क्या है? तवाबे क्यों है कि सिर्फ जो है वो मौसूफ के ताबे होता है। तवाबे निकला है ताबे से, पैरवी। सिर्फ क्या होता है? मौसूफ के ताबे होता है, उसका अपना कोई एराब नहीं होता। मौसूफ अगर हालत नसब में होगा सिर्फ भी हालत नसब में चला जाएगा, मौसूफ जर होगा सिर्फ भी जर जाएगी, ठीक है। मौसूफ अगर पीछे आपने आयत देखी थी ना, अर्रहमान अर्रहीम,
वो सब क्या था, मौसूफ अल्लाह था। तो रहमान भी देखें हालत जर में था, अर्रहमानी, जी रहीम भी हालत जर में था, रब्बी भी हालत जर में था, मालिक भी हालत जर में था। तो एक चीज होती है सिर्फ, दूसरी चीज होती है मातूफ। जी मातूफ और मातूफ अलैह का कानून किया है कि जो कुछ मातूफ अलैह होता है वही मातूफ होता है, जी अपना कोई उसका एराब नहीं होता, अपना उसका कोई एराब नहीं होता। तीसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं बदल। तीसरी चीज हम किसको कहते हैं? बदल। बदल क्या होता है कि किसी चीज को किसी की जगह रिप्लेस कर देते। और बदल को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि असल से उसको तब्दील कर, असल से उसे तब्दील कर दी। मैं कहता हूं ये सिरात जो है अस-सिरात का बदल है। ये जो सिरात है ये क्या है? अस-सिरात का बदल है। तो मैंने कहा कि बदल को चेक करने के लिए कि ये वाकई बदल है, उसको क्या करते हैं? असल से तब्दील कर दें। अगर असल से तब्दील कर देंगे तो आयत क्या बन जाएगी आपकी? इहदिना सिरात पढ़े? इहदिना सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा? तू हमें हिदायत दे उस रास्ते की जिस पर हाँ जिन पर तूने इनाम किया। इनाम किया है। जी बात बन गई ना? जी बात बन गई ना? तो ये क्या बन जाएगा? बदल। बदल। और बदल का भी अपना कोई एराब नहीं होता। बदल जिसकी जगह आया है उसी के एराब को फॉलो करें। बदल को चेक करने के लिए पहला काम क्या करना है? असल से रिप्लेस करें। कोई मानवी तब्दीली नहीं आएगी, कोई चीज यह भी नहीं है ना, तो हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत जी हिदायत ही मांगी ना, सीधे रास्ते की तरफ। जी वो सीधे रास्ते को यहाँ मजीद एक्सप्लेन कर दिया। तो हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, तू हिदायत दे हमें उस रास्ते की तरफ, उन लोगों के रास्ते की तरफ जिन पर तूने इनाम किया है, जिन पर तूने इनाम किया। यहाँ आपने डिटेल कर दी। तो ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके क्या बन गए? इसके लिए बदल। बदल। एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ऐसे रास्ते की तरफ जिन पर तूने इनाम किया है। किन लोगों पे इनाम किया है? अल्लाह ताला ने दो जगह पे कुरान मजीद पे फरमाया। अल्लाह ताला ने दो जगह कुरान मजीद में फरमाया है कि अल्लाह ने किन के ऊपर इनाम किया। याद है किसी को? जी मुझे याद है। इसराइल पे किया है ना? बताइए अपना नादिया। मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये तो सूरह निसा की आयत होगी। जी ठीक है। अल्लाह ने किस पे इनाम किया है? अल्लाह ने इनाम किया है नबीन पे, सिद्दीकीन पे, शुहदा और सालिहीन। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी उन्हीं के साथ अल्लाह ताला हमें रखे। और दूसरी कौन सी जगह पे वादा किया? एक और जगह भी वादा किया, आज सुबह ही हम पढ़ रहे थे दूसरी क्लास में। सूरह मरियम में भी किया। सूरह मरियम की आयत नंबर 60। ये जो अभी जो नादिया ने आपके साथ आयत पढ़ी है, ये सूरह निसा की है, आयत नंबर 69। और सूरह मरियम की आयत है 60। वहां अल्लाह ताला ने मजीद उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। बल्कि वहां तो अल्लाह ताला ने मजीद ये कहा कि वो लोग जिन पे इनाम किया है, और वो लोग की अल्लाह ताला ने सिर्फ भी बताई है। वो अल्लाह ताला ने क्या सिर्फ बताई है कि जब उनके इज़ा तुतला अलैहिम, और जब उन पर पढ़ी जाती हैं आयात रहमान, रहमान की आयतें पढ़ी जाती हैं, खर्रु सुज्जदों व बुकिया, तो वो गिर पड़ते हैं सजदे में रोते हुए, गिर पड़ते हैं। तो जिन पे इनाम करता है ना अल्लाह, वो फिर इनाम ऐसे ही होगा। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। आखिरी आयत रह गई है। आज हमारे साथ हमारी एक बहुत ही अच्छी साथी मौजूद हैं, और डॉक्टर फराह। अस्सलाम वालेकुम फराह जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर। खैरियत है? ठीक ठाक हैं? चलें जी, सर। आखिरी वाली आयत की कोशिश करें आप, इंशाअल्लाह ताला आप जरूर इसमें कामयाब होंगे।
जी फराज जी, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, क्या लग रहा है? गैर मग़दूबी, गैरी क्या लग रहा है आपको? इस्म, फेल, हर्फ? गैरी इसम है या हर्फ है सर? ये इस्म है। इसम, इसम ठीक। मग़दूबी, इसम, अलैहिम, ये भी इसम है सर। नहीं, इसमें दो चीजें हैं, अल्लाह अलग अलई चीज़ है। भी है, हाँ, अला तो भी है और हिम भी है। हाँ, तो अल्लाह क्या चीज है? हर्फ जर है सर। हाँ, तो अल्लाह हर्फ और हिम इस्म, ठीक है। वाव क्या चीज है? हर्फ अतफ हर्फ है। हर्फ है। ला क्या? सिर्फ अभी सिर्फ ये आइडेंटिफाई क्या करें, इस्म, हर्फ और फेल। वो हर्फ अतफ है, हर्फ जारा है, उसको छोड़ दे, ठीक है। सिर्फ ये बुनियादी करें। ला क्या चीज है? हर्फ। हर्फ। दालीन क्या चीज है? इसम। इस्म, जबरदस्त। चलिए, गैरिल मग़दूबी, गैरी क्या लग रहा है आपको? मुदाफ लग रहा है सर। मुदाफ लग रहा है। कैसे पता चला मुदाफ लग रहा है? अलिफ लाम भी नहीं है और आराब भी हल्का है। जबरदस्त, ये मुदाफ हो गया और आगे जो है वो आपको मिल भी रहा है, पूरा का पूरा मजरूर। ये मुदाफ और ये मुदाफ इलैह, ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके क्या बनेंगे? इस आयत के लिए आपको पिछली आयत में जाना पड़ेगा। जी सर। आयत के लिए आपको पिछली आयत में जाना पड़ेगा। पिछली आयत आप देखिए, पिछली आयत आपकी थी सिरातल लज़ीना। पिछली आयत क्या थी? सिरातल लज़ीना। मुझे बताइए, सिरातल लज़ीना को हमने बदल बनाया था ना? इसको हमने बदल बनाया, सिरात का बदल बनाया था। लेकिन मुझे बताइए कि वहां सिरात जो था वो क्या था? मुदाफ था। जी सर। और अल-लज़ीना क्या था? मौसूला, जिसपे मौसूला तो था, लेकिन इस सिरात के लिए क्या बना था? मुज़ाफ इलैह। मुदाफ इलैह किस हालत में होता है? हालत जर में होता है सर। जर में होता है। यहाँ मुदाफ किस हालत में है? यहाँ तो सर मुज़ाफ हालत जर में आया है। मुदाफ हालत जर में है ना? जी सर। मुदाफ हालत जर में, ठीक है। इस्म है, इस्म हालत जर में जाएगा तो कोई ना कोई वजह होगी। दो ही वजह होती हैं, या तो उससे पहले हर्फ जारा हो या वो मुज़ाफ इलैह। दोनों में से कोई चीज भी नहीं है। दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये हालत जर में क्यों है? सर ये मुज़ाफ इलैह तो नहीं है उसके साथ अगेन मुदाफ में तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या बन सकती है पॉसिबिलिटी? देखें, तवाबे पे गौर करें। तवाबे में चार चीजें आती है, मैंने तीन ही चीजें आपके सामने बताई हैं, चौथी तो अभी बताई नहीं है, वो बाद में बताऊंगा जब उसका वक्त आएगा। उन तीन चीजों में से कौन सी चीज इसके साथ अटैच हो सकती है? तवाबे की आपके सामने मैंने तीन चीजें लिखी थी। तो सिर्फ तो हो सकती है ये सर मातूफ इलैह और बदल दोनों। सिर्फ तो नहीं हो सकती ना,
صرف کس صرف کی نہیں ہو ہوگی؟ سکتی. صرف تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو معاف ہے الذین. بدل. معطوف بھی نہیں ہے، بدل ہی ہے. تو یہ کیا بن سکتا ہے؟ بدل بن سکتا ہے. یعنی بدل. غیر کو ہٹا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ الذین المغضوبی. ٹھیک. وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا. غضب ہوا. یہ مغضوبی جو ہے بیسیکلی اسم المفعول ہے، غضب کیا ہوا. تو غیر المغضوبی جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہو جائے گا؟ بدل ہو جائے گا الذین. یہ بدل ہو جائے گا الذین کا. اور جو پچھلی والی آیت تھی نا وہ میں لکھنا بھول گیا تھا، وہاں جب آپ نے صراط الذین لکھا تھا تو اس کو بھی آپ لکھ دیں صراط الذین بدل ودن بریکٹ الصراط، تاکہ آپ کو پتہ چلے بدل تھا کس کا. تو غیر المغضوب علیہم کیا بن جائے گا؟ علیہم کیا ہو یہ تو جائے گا؟ اس مرکب جاری سر. جی یہ جارا اور یہ مجرور، اور جارا اور مجرور مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ متعلق. یہ کس چیز کے متعلق ہوگا؟ کس چیز کے لیے سر یہ متعلق؟ تو فعل کے متعلق ہوتا ہے. نہیں، اب آپ کو میں ایک چیز نوٹ کرا دوں. متعلق دراصل 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے. کوئی بھی جب بھی آپ کو مرکب جی جاری سر. ملے گا نا وہ 8 چیزوں کے متعلق ہوگا. جو چیزیں آج تک پڑھ چکے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھوا دیتا ہوں. ویسے میں آج آپ کو ایک چارٹ بھی بھیج دوں گا وہ 8 چیزیں کون سی ہوتی ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں جب بھی آپ کو متعلق ملے گا وہ متعلق کن کن چیزوں کے ہو سکتا ہے. وہ متعلق ہو سکتا ہے اسم الفاعل کے، فاعل کے نہیں، ہم اسم الفاعل کے. فاعل اور اسم الفاعل میں فرق ہے، یہ تو معلوم ہے نا آپ کو سب کو. فاعل اور جی اسم سر. الفاعل کا فرق تو سب کو معلوم ہے. اسم الفاعل کے متعلق ہو سکتا ہے، یہ اسم المفعول کے متعلق ہو سکتا ہے، یہ فعل کے متعلق ہو سکتا ہے، فعل کے بھی متعلق ہو سکتا ہے، یہ مصدر کے متعلق ہو سکتا ہے، مصدر اگر اس کے اندر ہے تو، یہ اسم تبدیل کے متعلق ہو سکتا ہے. ایک دو تین چار پانچ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. باقی جو 3 چیزیں اس کو چھوڑ دیں، لیکن میں آپ کو بھیج دوں گا. اسم الفاعل کے متعلق ہو سکتا ہے، اسم المفعول کے متعلق ہو سکتا ہے، فعل کے متعلق ہو سکتا ہے، مصدر کے متعلق ہو سکتا ہے، اسم تبدیل کے متعلق ہو سکتا ہے. یہ تینوں چیزیں تو یہاں نظر آ ہی نہیں رہی ہیں. نہ مجھے فعل نظر آ رہا ہے اس میں، نہ مصدر نظر آتا ہے، نہ اسم تبدیل نظر آ رہا ہے. ان دونوں میں سے 2 ہی پاسبلٹی ہیں جو ہو سکتی ہے. تو یہ یاد رکھ لیں، یہ جو مغضوب ہے نا، مغضوب، کیونکہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کے کچھ تو اوزان ہے نا. فاعلون کا وزن ہے، مفعولون کا وزن ہے، یا اپنا کیا کہتے ہیں جب وظیفی کے باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پھر ڈفرینٹ قسم دوسرا طریقہ کار ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ اوزان ہیں. اوزان تو اس کے 26 اوزان ہیں، لیکن میں نے اس لیے زیادہ نہیں بتایا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنا زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مفعول جو ہے یہ بذات خود کیا ہے؟ یہ اسم المفعول. اسم المفعول. اسم المفعول ہے یاد. اور اسم مفعول وہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس کے متعلق ہو جائے گا؟ یہ مغضوب کے متعلق ہو جائے گا. تو غیر المغضوب علیہم کی فرق کیا ٹرانسلیشن کریں گی؟ جن کے اوپر غضب کیا گیا. نہیں، غیر المغضوب، نہ جن پر، اچھا. نہ ان پر، نہ کہ جن پر. ہاں، نہ کہ جن پر غضب یا کیا نہ گیا. ان پر غضب ہوا، نہ کہ ان پر غضب ہوا، یا نہ جن پر غضب ہوا. کیونکہ پیچھے آپ مانگ رہے ہیں نا، کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں نا، ہدایت کی مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف لے جائے جن کے اوپر تو نے انعام کیا. یہ واو کیا ہو جائے گا؟ حرف عطف. کیا ہو جائے گا؟ لا کیا ہو جائے گا؟ لا کیا ہو جائے گا؟ یہ تو نفی کے لیے ہے نا سر. نفی کے لیے بھی ہے. اور اگر ضالین، یہ ضالین جو ہے یہ کس کے اوپر ہو جائے گا؟ یہ مغضوب کے اوپر جو ہے نا واو عطف ہو جائے گا. تو مغضوب غضب نہ کیا گیا. ضالین، ضالین جو ہے یہ اسم المفعول ہے، یہ ضالین اسم الفاعل ہے. تو اسم الفاعل کے جب ترجمہ کرتے ہیں تو
काम करने वाले का मफहूम आना चाहिए, तो आप उसी को करते हैं। तो दालीन मखदूब के ऊपर जो है मातूफ होगा, तो ये मातूफ और ये सब इकट्ठे हो गए, तो वला दालीन गैर मखदूब अलैहिम, ना जिनके ऊपर गजब हुआ, ना जिनके ऊपर गजब हुआ, और ना वो गुमराही करने वाले हों, और ना ही वो भटकने वाले हों, और ना ही वो गुमराह हों। आप उसको किसी भी मफहूम में जिस तरह से आप लेके आना चाहते हैं कि इनाम कर उन पर, तो ये गैर मखदूब अलैहिम वला दालीन ये भी बदल बन जाएगा। तो आप देखें इस सूरह के अंदर आपने बदल नहीं पढ़ा था, लेकिन आज आपने पहली सूरत में आपके सामने बदल का कानून 2 ही आयत के अंदर आगे पीछे आया। फराज जी मुझे बताइए मखदूब से क्या मुराद है और दालीन से क्या मुराद? सर वैसे लफ्जी मतलब तो मखदूब में वही है जिन पर गजब हुआ, और वलद्दालीन जो आपने अभी बताया है, लेकिन सर वैसे ये यहूद व नसारा मुराद हैं। कुछ जगहों पर बताया जाता है कि मखदूब का मतलब यहूद है क्योंकि उन पे अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, और दालीन जो है वो नसारा हैं जो गुमराह हो गए। और आजकल के जो हम जो माशाल्लाह जो देवबंदी और बरेलवी और अहले हदीस और अहले सुन्नत और अहले तशय्युई, हम सब में हम मखदूब में और दालीन में नहीं आ रहे। दालीन में तो पक्के आ रहे हैं, मखदूब में पता नहीं सर। मखदूब में क्यों नहीं आ रहे? मखदूब बेसिकली ये जो लोगों ने कहा कि बहुत सारे मुफस्सिरीन में किससे मुराद यहूद है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह के हुक्म आने के बाद वो हुक्म की नफी करते थे, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि यौम सब जिसको हम कहते हैं, वो असहाब सफ वाला जो किस्सा है कि जब उनको मना कर दिया गया था कि मछली ना पकड़ो तो पकड़ते थे। ऐसे ही है ना, हमें भी मना कर दिया सूद का काम मत करो, लेकिन हम सूद का काम करते हैं। हमारे सामने हक वाज़े हो गया है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं ना, हम पे हक वाज़े है, हम फिर भी कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग देख लेना, नमाज तो पढ़ लो ना। और दालीन क्या गुमराह करने वाले, तो वो उसके बारे में जो लोगों ने दिया वो इसी तरह से दिया ना कि हक वाज़े हो गया, लेकिन फिर भी वो गुलू करते थे, और सैयदना ईसा को जो है वो अल्लाह का बेटा कहते थे। तो नाउज़ु बिल्लाह आज हमने भी अपने नबी और रसूल को कहां तक पहुंचा दिया। ये तो बड़े फख्र से शेर पढ़े जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के शेर हैं। चलो चलो हाजियों मदीना चलो, काबा तो देख चुके हो, अब काबे वाले का काबा देखो, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, और इसी तरह से बहुत सारी दूसरी चीजें। तो हम आज का मुसलमान जो है वो मखदूब और दालीन से फारिग नहीं है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बड़ी मालूम, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत हर वो तमाम काम करेगी जो बनी इसराइल ने किया। बनी इसराइल में यहूद नसारा दोनों शामिल है ना, बनी इसराइल में दोनों शामिल है कि नहीं शामिल है? शामिल है सर, दोनों शामिल आपने है। फरमाया कि मेरी उम्मत हर वो काम करेगी जो बनी इसराइल ने की, और एक जगह तो अल्फाज है कि अगर उन लोगों में से किसी ने अपनी माँ के साथ अगर बुरा काम किया है तो मेरी उम्मत भी ये काम करने से पीछे नहीं हटेगी, और ऐसे ही है। तो फर्क नहीं है हमें, तो हम सारे वैसे ही लोग हैं। अल्लाह ताला से हमें दुआ मांगनी चाहिए कि नमाज में हम कम से कम सिर्फ अगर फर्ज नमाज ही हम पढ़ते हों तो 17 दफा अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। और सैयदना अली की जो मैंने आपसे बात की थी, तो सैयदना अली इसी बात पे कहते थे कि मैं रोज जाता हूँ, अल्लाह से वादा करके आता हूँ, 17 दफा मुझे बुलाता है। और उन्होंने नंबर्स का जिक्र नहीं किया था कि मैं हर दफा जाता हूँ वादा करके आता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरा और आपका लिए याद। मुझे नहीं मालूम इससे पहले आपने इस सूरत को इस माना के अंदाज से, इस सोच के अंदाज से आपने पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो अल्लाह ताला आपके अंदर और वुसअत पैदा करे कि सिर्फ ना उसको पढ़े बल्कि उसको महसूस करने की वुसअत करे। और अगर नहीं किया, आज पहली दफा था, तो अल्लाह ताला से ये दुआ है मेरी कि ये सूरत आपको इसी माने के हिसाब से आपके ज़हन में बैठ जाए, और जब आप सूरह फातिहा पढ़े तो फिर आपको वाकई लगे कि आज आपने सूरह फातिहा पढ़ी।
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जिंदगी दी तो आपसे नेक्स्ट सैटरडे को मुलाकात होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि इन दिनों में आप कोशिश किया करें कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन रोज डेली बेसिस पे करें। जिस तरह से मैंने आपको छोटी छोटी कुछ सूरतें दी थी, जैसे सूरह नास थी, सूरह फलक थी, सूरह इखलास है। आखिरी की जो 10 सूरतें हैं ना, सूरह माँ से फील से, ये 10 सूरतें बहुत छोटी छोटी सूरत। मैं चाहता हूँ कि 10 सूरतें आप लोग खुद करें, अपने पास से करें, कागज पे इसी तरह से बना के भले मेरे साथ शेयर कर दें, कोई जरूरी नहीं है एक एक आयत करके भी शेयर करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिर्फ आज मैंने आपके साथ ये किया था ताकि आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ जाए, और वो मैं चाहता हूँ कि वो 10 सूरतें आप खुद अपनी तरफ से शुरू करें, और जहां आपको किसी जगह पे लगे कि कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे उसी तरह से बना के भेजें। और चाहे आप बना के मुझे भेज दें, चाहे आप उससे वॉइस मैसेज में मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपकी जरूर इसके अंदर मदद करूंगा। और मैं चाहूंगा कम से कम वो 10 सूरतें, ये 10 सूरतें तो ऐसी हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप तकरीबन सभी लोगों को याद होंगी, तो कम से कम ये 10 सूरतें और ये सूरह फातिहा, ये तो आप लोगों को माना के साथ, तरकीब के साथ, मफहूम के साथ ऐसी जहन में बैठ जाए कि जब भी आप पढ़ें तो आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्शन बने। तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन से सूरह यूसुफ को शुरू करेंगे। सूरह यूसुफ बहुत ही जबरदस्त सूरत है, बहुत ही जबरदस्त मज़ामीन है। अल्लाह ताला खुद कहता है अहसनुल क़सस, यानी जिस किस्से को अल्लाह कह के अहसनुल क़सस है, तो आप अंदाजा करें वो कैसा किस्सा हो। तो सूरह यूसुफ इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करेंगे, बहुत खूबसूरत मज़ामीन है। और मैं तो आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हम सूरह यूसुफ शुरू करेंगे, हम एक सेशन में मैक्सिमम 5-6 आयत, 7 से ज्यादा आयत कर भी नहीं सकेंगे। और मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए बड़ा खूबसूरत मौका, क्योंकि सूरह यूसुफ एक ऐसी सूरह है कि जितनी ग्रामर आपने पढ़ी है और जितनी ग्रामर आपने नहीं पढ़ी, और बल्कि ग्रामर का वो हिस्सा भी जो बहुत कम इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद में, वो पूरे का पूरा कवर। यानी अगर आपने सूरह यूसुफ आपने की तो कुरान मजीद की ग्रामर आप समझ लें आपने 99.9% कवर कर लिया। 99.9% आप सूरह यूसुफ के अंदर कवर कर लें। तो मैं आपसे 2 दरख्वास्त करूंगा, आपकी ग्रामर भी कवर होगी, और वो लोग थोड़ी चीजें जिनकी फंस गई हैं वो भी इंशाल्लाह ताला उसमें क्लियर आउट होगी। मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है, वो दरख्वास्त सब इतनी है कि कोशिश कीजिए कि इस सूरह को जो है वो आप याद करने की भी कोशिश कीजिए। मिसाल के तौर मैंने आपसे कहा कि हम मैक्सिमम एक सेशन के अंदर 5-6 आयत, 7 आयत से ज्यादा नहीं कर सकते। आज भी आप देखें, अगर हमने टोटल हमारी 7 आयत थी तो उससे ज्यादा आयत नहीं कर पाते, क्योंकि मेरी कोशिश यही होगी कि जब सूरह यूसुफ भी शुरू करेंगे तो चंद आयत के बाद फिर 100% आयत आप लोग करेंगे, और मैं आप लोगों को पहले से डेडिकेट भी कर दूंगा आयत नंबर कि कौन कौन साथी कौन कौन सी आयत करें। हम ये भी कर सकते हैं ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी रहे। लेकिन साथ साथ मेरी ख्वाहिश होगी कि आप उस सूरह को याद भी करें। बहुत अच्छा जबरदस्त मौका होगा। आपको मालूम है कि मेरे पास 7 दिन है, मैं अपनी 6 आयत 7 आयत जितनी मैंने करनी इतनी में याद करूँ, फिर आप सोचें क्या लुत्फ आएगा आपको। सूरह यूसुफ जैसी इतनी पावरफुल सूरत, और ये आप समझिए कुरान मजीद का एजाज है कि जितने भी अंबियाओं के कसस आए वो पीस एंड पार्ट्स के अंदर आपको कुरान मजीद में मिलते हैं, थोड़े 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 थोड़े। उसके बाद आपको सैयदना मूसा का मिलता है, फिर सैयदना ईसा का भी जो 2-3 जगहों पे आया वो थोड़ा थोड़ा करके आया, इसी तरह से सारे आपको मिलते हैं। लेकिन सूरह यूसुफ एक वाहिद एक ऐसी सूरह है जिसमें सैयदना यूसुफ का पूरा कसस एक ही जगह, और इसके अलावा कहीं और कोई बात ही नहीं उनकी, सिर्फ एक जगह पे नाम आया, बाकी उसके बारे में कोई बात ही नहीं। और आपको ऐसी ऐसी चीजें उसमें मिलेंगी और ऐसे ऐसे अश्काल जो इस सूरत के हवाले से और बहुत सारे दूसरे मामले में जो बहुत सारी हमारे जहनों में जो गलत फहमियां हमारे अंदर जो डाली हुई है ना, इसराइली रवायात से और हमारे अपने बहुत सारे बुजुर्गों की रवायत से, इंशाअल्लाह ताला वो भी इंशाअल्लाह आपकी रफ़ा होगी इंशाअल्लाह। तो मेरी दुआ है कि जरूर आप सब लोग हिस्सा बने, और आज की सूरत के हवाले से भी इसको भी कोशिश कीजिएगा, अपने पास तो मजीद देखें, इसको खुद भी कोशिश करें एक दफा दोबारा 0 मीटर से वर्बली करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। और सूरह फील से लेकर सूरह नास तक ये 10 सूरतें तकरीबन सभी लोगों को याद होगी।
ان کی ترکیب کریں. آپ میرے ساتھ اس ترکیب کو شیئر کرنا چاہیں, وائس میسج پہ کرنا چاہیں اس پہ کر دیں, لکھ کے کرنا چاہیں, جو آپ کی اس میں کمی بیشی ہوگی میں اس کو ضرور پورا کروں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیٹرڈے سے ہم سورہ یوسف کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ.